Hello friends, we'll start today's webinar. My name is Hemant Agarwal. I'm the host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. The website has very simple language articles, various drafts of applications, webinar videos, and many more shall be added as and when time permits. We have created a WhatsApp group only for housing society related matters, wherein discussions are done on legalities, difficulties, and problems faced in CHS. Anybody wishing to join may send me a private WhatsApp message on 9820 174 108. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Questions in brief may be typed in the chat box, which will be answered first. Questions only relating to today's topic will be taken up, and other questions shall be ignored. Our today's speaker is Advocate Fatima Fauzdar. Advocate Fatima Fauzdar practices in Mumbai and Pune and deals in all types of criminal, civil, and cooperative matters. She also does writ petition in High Court, obtaining probate, letter of administration of will, and other various agreements and contracts and documents. She will share her knowledge on various possibilities and legal remedies on today's topic, which is terrace, leakages, ownership, laws, usages, rights, etc. Before I invite her, I would like to give a small 1 minute preface कि terrace क्या क्या चीज होती है, like what all are considered as terrace. आपने वर्ड सुना होगा पॉकेट टेरेस. पॉकेट टेरेस का मतलब है आपके फ्लैट के बाहर में जो छोटा सा बालकनी है, मे बी 3x11 का या 10x12 का वगैरह, उसको पॉकेट टेरेस बोलते हैं या बालकनी बोल लीजिए. कई कई फ्लैट्स के साथ में प्राइवेट टेरेस भी होता है. प्राइवेट टेरेस बड़ा होता है, लाइक मे बी हॉल के साथ में बड़ा सा टेरेस है, 200 300 500 स्क्वायर फीट का टेरेस है, जहां लोग छोटे मोटे गार्डनिंग वगैरह भी करते हैं, एंड दैट इज परमिसेबल ऑल्सो. फिर कॉमन टेरेस का मतलब वो है जहाँ पे हर कोई आना जाना कर सकता है. प्राइवेट टेरेस सिर्फ वो फ्लैट वाला यूज कर सकता है, और कॉमन टेरेस जो है, जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर होता है, उसको कॉमन टेरेस बोलते हैं. सो टेरेस पोर्शंस कैनॉट बी सोल्ड or purchased, more so specifically since it is free of floor space index FSI. जो टेरेस होता है वो FSI फ्री रहता है, तो इसके लिए उसका बाइंग और सेलिंग अलाउड नहीं है. पर कई बार बिल्डर ये बोलते हैं कि आपका 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आपको एक पॉकेट टेरेस देते हैं, but that pocket terrace does not consume any FSI. Hence, you cannot enclose it, you cannot encroach it, nothing can be done. अगर बिल्डिंग के प्लान्स में टेरेस FSI कैलकुलेशंस में डिफाइन कर दिया गया है, तो वो कॉमन ओपन स्पेसेस नहीं रहता है. कॉमन ओपन टेरेसेस जो है, इट इज ऑलवेज रेफर्ड एज open to sky spaces, so it cannot be covered, which includes weather shades.
जैसे टिन के पतरे वगैरह लगा देते हैं कई लोग वगैरह, वो भी परमिटेड नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि इसी साल बीएमसी ने छत के ऊपर टिन शेड लगाना अलाउ कर दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, कि आपकी बिल्डिंग उतना लोड सहन कर सकती है, जो भी टिन शेड या फाइबर शीट्स का वजन वगैरह होगा। एंड उसका कोई पर्टिकुलर फीस वगैरह भी चार्ज होता है। Now to understand further and get to know more detail on this terrace issue, I'm inviting Advocate Fatima ma'am on behalf of all the participants. We welcome her and request her to share her knowledge with all of us. Over to you, Fatima ma'am. Thank you. Please proceed. Good evening, Hemant sir, and a very good evening to everybody who's present. And thank you, Hemant sir, for the introduction and the brief introduction to the topic as well. Thank you. Friends, आज का topic हेमंत सर ने already short में तो बता दिया है. Now हम लोग will go through it in a little bit more detail. So our today's topic is on terrace. Terrace में जो leakage होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और उसके अंदर हमको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए ताकि ये सब चीजें अवॉइड हो और उस पर हमको सोल्यूशन मिले. सो वॉट एवर हेमंत सर हैज सेड वो हम थोड़ा भी डिटेल में जानें. सो आई बिगिन माय टुडेज सेशन and I hope everybody is happy with it, and I am able to do justice to the faith that Hemant sir has had in me. Okay, what is a terrace? अभी टेरेस को जो डिफाइन किया है उसमें लिखा है कि वो फ्री एंड नॉन सेलेबल एरिया. फ्री एंड नॉन सेलेबल एरिया मतलब ओपन टू द स्काई, ओपन टू द स्काई, और ये कॉमन स्पेस है. इसको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो. जो भी बिल्डिंग में रेसिडेंस है ये सारे लोग इस टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और ये कॉमन यूसेज के लिए. अब ये टेरेस का पूरा जो जिम्मेदारी होता है उसको हैंडल करने का, संभालने का, वो रेस्ट विद द मैनेजिंग कमिटी. ये प्रॉपर्टी होती है मैनेजिंग कमिटी. बिल्डिंग आपका है, फ्लैट आपका है, आपकी इंडिविजुअल बैल्कनी जैसा पॉकेट टेरेस जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज योर्स, but the open space on the top of your building belongs to the managing committee. Now under the development control rules, fire act, तो इसमें काफी सारे एक्ट्स और रूल्स आ जाते हैं. एक है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, फिर फायर एक्ट आता है, बीएमसी भी आ जाता है. तो टेरेस के लिए हम लोग दरवाजा वगैरह सिक्योरिटी के लिए नहीं लगा सकते हैं, और अगर लगाया है तो भी उसको हम लोग लॉक नहीं कर सकते. यू कैन नॉट लॉक द टेरेस एंड कीप द कीज विद द सिक्योरिटी और मेक अ पर्सन फील कि फॉर एवरी लिटिल थिंग टू गो ऑन द टेरेस उसको सिक्योरिटी का परमिशन लेना चाहिए या चेयरमैन को लेटर लिखना चाहिए. ये बिल्कुल गलत है. टेरेस को लॉक नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस. अभी सेक्शन 3F ऑफ महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 इस चीज को डिफाइन करता है अंडर द कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज. अब ये जैसा शॉर्ट में देखेंगे तो हु इज द ओनर ऑफ द कॉमन टेरेस अंडर सेक्शन 211 ऑफ द फायर एक्ट. सोसाइटी इज एंड द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी is the custodian, trustee, caretaker of the terrace open space for all legal purposes and is liable for all events. जो भी हादसा होता है उसमें कुछ और होता है, उसकी जो भी लाइबिलिटी है उस सब चीज के लिए जिम्मेदार जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमिटी उस वक्त है, वो मैनेजिंग कमिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस चीज की देखरेख की और उसको मेंटेन करने की, उसको इवेंट्स के लिए देने की, वो सब कुछ चीजें. Now, the absolute ownership rights on the building terrace is always with the society. Now, under the provisions of section 4 and 10 of the Maharashtra ownership of Maharashtra Apartment Ownership Act and flat apartments, the builder developer has no right to sell the terrace or have any ownership rights on the building terrace.
मतलब बिल्डर वो ओपन टेरेस किसी भी, समझो जो टॉप फ्लोर का है, बिल्डर कभी कभी बोल देते हैं सेल करते वक्त, आपका टॉप फ्लोर है, टेरेस भी आपका ही है, आप फुल यूज कर सकते हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वो सारा राइट्स एक ही फ्लैट ओनर को बिल्डर सेल करते वक्त नहीं दे सकता है। Under the provisions of Section 4 and 10 of MOFA, builder developer has no right to sell terrace or have any ownership right on the building terrace. Now, all flat owners in the building have equal, undivided, and irrefutable right to access and use the terrace for any legitimate purposes. मतलब अभी वो बिल्डिंग के जितने भी रहवासी है, जितने भी फ्लैट ओनर्स है, इंक्लूडिंग द टेनेंट्स, उन सबको इक्वली अनडिवाइडेड राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं क्या एक का 2 BHK है तो उसके राइट्स ज्यादा हो गए और 1 BHK है तो उसके राइट्स कम है। नो, एवरीबडी विल हैव इक्वल राइट ऑन द यूज ऑफ द टेरेस एरिया फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस। लेजिटिमेट पर्पसेस मतलब कोई फ्लैट ओनर ऊपर टेरेस पे शराब विराब नहीं बना सकता है, इलीगल काम नहीं कर सकता है। तो लीगल जो भी है, लीगलिटी, बर्थडे पार्टी है, किसी का एंगेजमेंट है, किसी के घर की कुछ पूजा है, किसी के घर में और कुछ फंक्शन है, तो फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस ही वो टेरेस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दे विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड द सोसाइटी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट। अब टेरेस हम लोग देखेंगे किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अभी बेसिक कॉमन यूसेजेस मीन्स ड्राइंग ऑफ, लाइक जब जब लेडीज होते हैं समर में, सबके घर में पापड़ बनते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं, जो हम लोग स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, तो वो सुखाना होता है। तो सबसे तेज धूप कहाँ होती है? टेरेस पर ही होती है। तो अक्सर सब लेडीज की बिल्डिंग एक साथ मिलके बनाते हैं और फिर ऊपर वो चटाई वगैरह बिछा कर उसको सुखाते हैं। सो फॉर सम ड्राइंग सम एडिबल थिंग्स लाइक पापड़ है, कुछ पूरीज है, उस चीज के लिए। देन सीजनिंग ऑफ पिकल्स, जैसा पिकल बना के बॉटल रख दिया ताकि वो गर्मी से उसको जो भी उसका सीजनिंग होता है वो हो जाए। फिर ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, डिश टीवी एंटीनास, देन पार्टिंग, बर्थडेज एंड एनिवर्सरी एंड रेसिडेंट एक्टिविटीज, कुछ डांसिंग की क्लासेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो रेसिडेंट्स के इंटरेस्ट में हो और जिसके लिए स्पेस, ओपन स्पेस की जरूरत है, वो सारी आप टेरेस पे कर सकते हैं। Now, as per the Mumbai High Court order, renting, hiring is illegal and unauthorized. Hence, by virtue of this, society cannot levy charge or charge any amount for usage of terrace space by its own members. मतलब अगर अपना खुद का मेंबर है, खुद के फ्लैट ओनर है, तो सोसाइटी उनको ये सब फंक्शन करने के लिए चार्ज नहीं कर सकती। हाँ, एक इंटीमेशन दे सकता है फ्लैट ओनर कि मेरे घर में ये फंक्शन है तो मैं ये चीज टेरेस पे करने वाला हूँ, but I will ensure that there is no damage to the structure and I will take care of its cleaning and maintenance and give it and keep it in as is where is condition. मतलब जैसे मैं लूंगा या लेंगे, हम वैसे ही उसको वापस रखेंगे साफ सफाई करके हमारा फंक्शन होने के बाद। उसको रेंट पे नहीं दे सकता है सोसाइटी। हाउएवर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है, एक मिनिमल कॉस्ट जो होगा, जैसा कुछ क्लीनिंग के बारे में अगर मेंबर बोलता है कि मुझे नहीं जमेगा क्लीनिंग के लिए, तो जो उनका हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है सोसाइटी का, वो क्लीनिंग करवा सकता है। तो उसके लिए जो भी उनका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगा वो मेंबर को देना पड़ेगा। और अगर कुछ डैमेजेस होता है टेरेस पे, कुछ टूटता है, तो दैट विल बी द पर्सन हु हैज टेकन द एट दैट टाइम, ये उसका लायबिलिटी होगा वो डैमेज को भर के देने का। अभी इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल सोलर वाटर सिस्टम, स्टोरिंग ऑफ ओल्ड जंक फर्नीचर, बाइसिकल एक्सेट्रा अबव द ऑन द टेरेस इज प्रोहिबिटेड। मतलब अभी आपने आपके घर में रिनोवेशन किया, आपने नया कबर्ड खरीदा, अपने बच्चे के लिए नई साइकिल खरीदी, तो चलो ये ऊपर रख दो टेरेस पे। आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी जंक वगैरह आप अपने टेरेस पे जमा नहीं कर सकते हैं एंड यू विल बिकम लायबल अंडर द फायर एक्ट। The issue of the common spaces and on the terrace are restricted for free movement. मतलब open space का मतलब क्या है कि इंसान फ्रीली चल सकता है, बैठ सकता है, चेयर लगा के। ठंड की सीजन है, 4-5 सोसाइटी के लोग जाके ऊपर धूप में थोड़ा सन बात लेते हैं, जो लोग विटामिन डी के लिए, वो करने के लिए ऊपर बैठ गए, वो सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी जंक वगैरह जमा करके उस स्पेस को वो लोग गंदा नहीं कर सकते हैं।
Now, subject to various parameters under the Development Control Rule 29, the FSI free limited terrace space can be used for installing advertisement hoardings, antenna, mobile towers, but after obtaining relevant permission from the local civic body. अब हम लोग अक्सर देखते हैं सोसाइटी के ऊपर इलीगल मोबाइल टावर्स बने हैं, और इस पे हम लोग का एक सेमिनार भी सर ने कर दिया है ऑलरेडी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो इलीगल मोबाइल टावर्स लगाते हैं, बट उसके लिए आपको बीएमसी की परमिशन, फायर डिपार्टमेंट की परमिशन, ऑडिट रिपोर्ट लेना पड़ेगा आर्किटेक्चर से कि आपकी बिल्डिंग ये सब लोड लेने के तैयार है, उसके बाद आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द जो भी लोकल फॉर्मेलिटीज है लोकल बॉडी की, जैसे बॉम्बे में बीएमसी है या पुणे में पीएमसी है, इन दोनों बॉडीज की परमिशन लेने के बाद ही आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना वो इलीगल कहा जाएगा। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड and if there is approval of the same in the general body meeting via a prior notice agenda resolution subject to various parameters। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि चेयरमैन ने डायरेक्टली लेटर लिखा और बीएमसी को या पीएमसी को भेज दिया, हमको ये इंस्टॉल करना है, आप परमिशन का एनओसी दे दिए, नहीं, इसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो सब पैरामीटर्स फॉलो, ड्यू पैरामीटर्स फॉलो करने के बाद ही वो इंस्टॉलेशन हो पाएगा। इट इज नॉट दैट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट रात को डिसाइड किया, सुबह में इलीगल मोबाइल टावर आया या सोलर वाला आ गया और इंस्टॉल कर दिया, नहीं, प्रॉपर परमिशन वगैरह मिलने के बाद ही वो लोग वो सब कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस टू लॉक द टेरेस डोर अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 38 read with 43, further read with 44, the building terrace cannot be kept locked or latched even from inside or outside and shall always be freely accessible and have unrestricted entry irrespective of any criteria। मतलब टेरेस का डोर्स को आप ना अंदर से लैच कर सकते हो ना बाहर से उसको बंद कर सकते हो, मतलब 24/7 irrespective of anything टेरेस हमेशा खुला ही रहेगा। बीएमसी इसके खिलाफ एक्शन ले सकती हो, अगर आपने टेरेस को लॉक किया तो बीएमसी कैन फाइल अ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द एमआरटीपी एक्ट एंड अंडर सेक्शन 381 रेड विद 481 ऑफ द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1818। मतलब दोनों एक्ट के अंदर, फायर एक्ट, एमआरपीटी एक्ट और बीएमसी एक्ट के अगेंस्ट में आप पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। Or access to terrace cannot be restricted or stopped to any member. This means that the door of the terrace cannot be locked under any circumstances. कोई एक्सक्यूज देते हैं कि किसी ने जंप कर लिया, किसी ने सुइसाइड कर लिया, तो हम लोग वो डर की वजह से ये टेरेस लॉक करते हैं। जी नहीं, अगर ऐसा होता तो जैसा एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर ऐसा होता तो रेलवे ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट नहीं होते, उस पे से भी लोग कूद के जान दे सकते थे। तो किसी भी कीमत, लेकिन ब्रिजेस होते हैं, रेलवे ब्रिजेस होते हैं, अब फ्लाईओवर्स होते हैं, एवरीथिंग इज, वो भी ओपन टू स्काई रहते हैं ना, जिसको कुछ करना है वो तो कर सकता है, कहीं से भी जाके कर सकता है। वी हैव हर्ड सो मेनी केसेस ऑफ सुसाइड फ्रॉम होटल्स एंड ऑल आल्सो, होटल टेरेस और समवेयर व्हेन द पर्सन गोज। बट ये रीजन देके इसके आड़ में सोसाइटी ये नहीं कह सकता है कि बाबा ये डर की वजह से हमने टेरेस लॉक कर दिया है। इट इज टोटली इलीगल एंड नॉट एक्सेप्टेबल। अभी जो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी पे आते हैं, अगर सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी आर रिस्ट्रिक्टिंग and restraining any member from accessing the building terrace for any reason can be criminally prosecuted under the Indian Penal Code in the local magistrate court। मगर अगर किसी मेंबर ने कंप्लेन किया कि ये मैनेजिंग कमेटी टेरेस का यूज नहीं करने देती है, हर समय इसको लॉक रखती है, तो अंडर द इंडियन पीनल कोड आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। रिटन कंप्लेन और नोटिस कैन बी मेड टू द Chief Fire Officer of the Fire Department about such locked terrace, who shall be bound to initiate legal action on the building owner or society for locking the terrace, which means restricting access to the terrace.
अंडर इंडियन पीनल कोड जैसा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो भी सेक्शन आते हैं उसके अगेंस्ट में आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर अथॉरिटीज ने भी आपको आपकी कंप्लेंट को नजरअंदाज कर दिया तो उसके लिए भी आप एक्शन ले सकते हो। इन सच केसेस यू कैन राइट फाइल अ रिटन कंप्लेंट और अ नोटिस to the directly to the local magistrate court under section 156 in bracket 3 for of the criminal procedure code for investigation and for initiating necessary action against the managing committee। एंड फिर पुलिस उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, लोगों से पूछेगी वहां आके और अपना रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगी और उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर वो मैनेजिंग कमेटी पे एक्शन लिया जाएगा। अब टेरेस का लीकेज, ये आज अपना मेन टॉपिक है। जैसे टेरेस पे जो लीकेज होता है ड्यू टू रेन्स और वॉट एवर द रीजन, वाटर टैंक जो अक्सर आजकल बिल्डिंग में ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं, कभी कभी उसमें लीकेज होता है, धीरे धीरे पानी सीप होता है, तो उसमें से लीकेज जब होता है तो वो जो आज का अपना मेन टॉपिक है, अब उस पर आते हैं। टेरेस लीकेज अफेक्टेड अग्रीव मेंबर और फ्लैट ओनर कैन डायरेक्टली कंप्लेन or serve a proper notice to the BMC to file a prosecution under section 381 read with 482 of the BMC Act against the society secretary for failing to stop the leakage। अभी समझो एक्चुअली ये जो लीकेज का प्रॉब्लम अक्सर जो होता है, पहले जो टॉप मोस्ट फ्लैट ओनर है उसको होता है, क्योंकि पहला टेरेस का पानी उसके ही फ्लैट में दिखना शुरू हो जाता है। मे बी फिर जब उसको निगलेक्ट किया जाता है तो वॉल से सीप हो के वो उसके नीचे वाला जो फ्लैट होगा उसमें दिखेगा, बट द मेन पर्सन हु इज अफेक्टेड, द मेन फ्लैट ओनर विल बी द पर्सन हु इज स्टेइंग ऑन द लास्ट फ्लोर just below the terrace। So if that flat owner complains to the secretary or the chairman, especially the secretary, and if the secretary does not take any notice of this complaint, then the member can file a complaint to the fire department, as I've just mentioned, and raise an objection and ask them to come and see the leakage and take action against the secretary। Police FIR under section 336 read with 34 of the Indian Penal Code can be filed against the top floor member and the society secretary for failing to stop the leakage। मतलब अभी सपोज टॉप फ्लोर पे जो रह रहा है टेरेस के नीचे वाले फ्लैट में, उसने भी कुछ एक्शन नहीं लिया और उसकी ये गैर जिम्मेदारी की वजह से उसके बिलो के फ्लैट में भी लीकेज होने लगा, तो वो फ्लैट ओनर, वो फ्लैट ऊपर के फ्लैट ओनर और सेक्रेटरी दोनों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस उसका भी फ्लैट खराब हो रहा है करके। So such an FIR can be filed against the secretary for failing to stop leakage from terrace। The registrar of the cooperative society does not have any jurisdiction। अभी देखो हम लोग की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इट इज गवर्न अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड मॉडल बायलॉज, लेकिन ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है टेरेस का, इसके अंदर रजिस्ट्रार का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं आता है और उधर कंप्लेन रेज करके शायद वो ग्रीवेंस एड्रेस भी नहीं हो पाएगा। एक इंटीमेशन आप दे सकते हो, लेकिन उनके पास ये बात का जुरिस्डिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एजुकेटिंग और एंटरटेनिंग और पासिंग एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑन टेरेस रिलेटेड कंप्लेंट्स और इश्यूज, मतलब टेरेस रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स या इश्यूज है उस पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार of cooperative department will not be able to do any justice to it because they do not have the jurisdiction, nor do they have the authority। Abhi comes to pocket terrace। Pocket terrace sir has already explained, but I'll still just go through it in short। Pocket terrace is a private terrace exclusively socially attached to an individual flat which is FSI free and an open space which can be accessed used only from within the flat। मतलब दूसरे फ्लैट ओनर वाले को उसका एक्सेस नहीं रहेगा, जो फ्लैट ओनर उधर रह रहा है उसी को उसका एक्सेस होगा। एंड दिस इज आल्सो क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट पॉकेट टेरेस और अ कॉमन स्पेस अवेलेबल टू दैट फ्लैट ओनर। एंड इट वुड बी अ ऑफेंस अंडर रूल एंड अंडर द डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड द MRTP एक्ट एंड फायर एक्ट टू एनक्लोज द पॉकेट टेरेस बाय ब्रिक मोर्टर which some part may be enclosed by using temporary materials also। कभी वो टिन शेड वगैरह तो अलाउ हो गया है, लेकिन आप उसको ओपन टेरेस को और ब्रिक वॉल लगा के उसके अंदर एक रूम के जैसा बना के
वैसा नहीं कर सकते। अगर वो ओपन है उसको आपको ओपन ही रखना है। हाँ, ऊपर से आप कुछ टिन वगैरह शेड वगैरह बना सकते हो, लेकिन उसको 100% एनक्लोज नहीं कर सकते। और उसका यूज होता है क्यों? तो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर को अपना गैस सिलेंडर है, उनका कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, वो जो कुछ भी है वो वहां पे रख सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इट इज लाइक दैट, इट इज फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट ओनर। अब नेक्स्ट आता है अपना, सेकेंड, अब ये जो पॉकेट टेरेस है उस पे भी सोसाइटी कुछ भी चार्जेस नहीं लगा सकती है। These are the common areas of the individual flat owners। और अभी जो पॉकेट टेरेस है उसमें कुछ भी लीकेज होता है, अभी कभी कभी होता है, लोग वो ओपन टेरेस में अपने फ्लैट के गमले रखते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, एक छोटा सा गार्डन जैसा बना देते हैं। तो अगर उसकी वजह से just give me a second, I'll just sip of water please, 2 minutes please। Thank you। If there is any leakage from that pocket terrace to anybody's flat or to the pocket terrace of the flat below, फिर वो लीकेज की जिम्मेदारी will be the owner of the flat owner। इसमें सोसाइटी का कोई भी से नहीं होगा। The flat owner cannot complain to the society कि my terrace is leaking, please repair the structure। It will be the duty and liability of that flat owner to repair his individual pocket terrace for leakage cost and causing disturbance to another flat owner। अब पॉकेट टेरेस और बैल्कनी, इस दोनों चीजों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन के तौर पे इसको अपन देख लेते हैं। बैल्कनी इज अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ अ पॉकेट टेरेस विच इज अ स्टेटस सिंबल। जैसे एक बैल्कनी होता है, इंडिविजुअल बैल्कनी बोलते हैं। हार्डली यूज एंड नो सच सिग्निफिकेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द बैल्कनी स्पेस। इट इज जस्ट लाइक ए जंक यार्ड फॉर स्टोरिंग सम, जैसा न्यूज़पेपर है, सिलेंडर है, कभी कभी वो बैल्कनी का यूज है। अभी एक फैशन भी आ जाता है, जैसा वो ड्राई टेरेस देते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, अभी न्यू जो बिल्डिंग आ रही है उसमें यू हैव दैट ड्राई टेरेस एरिया वे यू कैन कीप योर वॉशिंग मशीन, और वो सब वाटर फिल्टर वगैरह करने का वो कनेक्शन वगैरह बिल्डर दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें भी लीकेज हो और वो आपका घर से हो रहा है, आपके टेरेस से हो रहा है, तो वो रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब टेरेस लीकेज पे आते हैं, जो अपना आज का मेन टॉपिक है। थोड़े सारे डेफिनेशंस टेरेस को रिलेटेड वी हैव अंडरस्टूड इट। Now, any type of leakage in the flat located just below the terrace shall be within the parameters of leakage from terrace। मतलब अभी ए का फ्लैट ऊपर है, उसके नीचे बी का फ्लैट है, तो जो लीकेज टेरेस से होगा, ए के फ्लैट के टेरेस से, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लीकेज एंड इट विल बी टर्म्ड एज अ लीकेज फ्रॉम टेरेस ओनली। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि लीकेज फ्रॉम फ्लैट, बिकॉज वो एक टेरेस है, पॉकेट टेरेस है, बैल्कनी है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लीकेज फ्रॉम टेरेस ओनली। Such leakage should be a result of rainwater, overflow of leakages from the overhead water tanks, uneven floorings, natural cracks that may be developed because of hammering when making furniture or playing cricket और इवन पाउंडिंग, जैसा भी इसमें दिया हुआ है। अभी जो ऊपर के फ्लैट में लोग उनके ग्राउंड पे बैठ के मसाला कूटते हैं, they grind the masala or some powder, so you hammer it, so when you hammer it on the tile, it could cause some kind of vibration in the surface below the tile which could loosen the concrete or anything, and this could also cause the leakage। That's why it is always advisable कि जब आप कुछ भी कूटो तो एक कपड़ा बिछाइए, एक थोड़ा गादी के जैसे कपड़ा बिछा के उसको रख के फिर कूटे, ताकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो टाइल के नीचे के सरफेस पे थोड़ा कम हो जाए। अब हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? A registered member on record or an authorized occupant on record is entitled to file complaint relating to leakages। Even a non-affected public member can file complaint before the BMC, requesting to take some suo motu cognizance of some leakages। अब नॉन मेंबर कैसे क्या? अभी कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जिसकी बैल्कनी रोड पे होती है,
नीचे उसकी दुकान होती है, किसी की दुकान है और आपने ऊपर से पानी डाल दिया तो वो नीचे पानी टपकता रहता है। और अगर कोई कस्टमर है वो जो दुकान में जा रहा है उसके ऊपर वो पानी गिरता है, तो वो इंसान भी कंप्लेन कर सकता है कि इधर से लीकेज हो रहा है और ये पानी पूरा रास्ते पे गिर रहा है, ये सब पानी हमारे सर पे गिर रहा है, तो प्लीज इसके ऊपर आप सुमोटो एक्शन लीजिए। Any type of leakage shall eventually put the building at risk to passing public members। मतलब अगर जो रास्ते से पब्लिक चल रही है या जो लोग नीचे रह रहे हैं वो उसको वो लीकेज की तकलीफ हो सकती है और वो बिल्डिंग को भी रिस्क हो सकता है। कैन अ लाइसेंस टेनेंट फाइल लीकेज कंप्लेन? अभी टेनेंट है, आपने अग्रीमेंट कर दिया है, मे बी यू आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया, यू आर स्टेइंग अब्रॉड, यू हैव अ टेनेंट, यू हैव डन एन लीज अग्रीमेंट फॉर 5 years 6 years, यू ट्रस्ट दैट टेनेंट, तुम्हारा कोई फ्रेंड ही है तो आपने लॉन्ग लीज कर दिया है और वो टेनेंट रह रहा है, तो क्या वो लाइसेंस टेनेंट भी कंप्लेन कर सकता है? Yes, this would be depend on the clauses of the duly registered leave and license agreement। अभी अगर लीव और लाइसेंस अग्रीमेंट में ओनर ने टेनेंट को वो राइट्स दिए हुए हैं कि ही कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस और डिस्टर्बेंस दैट इज कॉज्ड टू हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन द फ्लैट, फिर वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। टेनेंट वुड हैव टू impede the cooperative housing society, the secretary and the flat owner। This is possible by virtue of ₹100 paid as nominal membership fees। मतलब वो एक nominal member बन जाएगा, पहले ₹100 पे कर देगा nominal member बनने के बाद, under the prescribed bylaws of the Cooperative Housing Society Act, bylaw number 20 read with 24B, the tenant is defined as a nominal member of the Cooperative Housing Society। अभी लीकेज का जो कंप्लेन है कोई भी मेंबर का, वो हम लोग किसके अगेंस्ट और किस किस को कर सकते हैं? लीकेज कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट फर्स्टली इन नेम ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पहले, सेकेंडली अगेन द डेजिग्नेशन ऑफ द सेक्रेटरी, देन impleading others, MC members is whoever it is, the flat owner, and other members too can be put as a joint members and a complaint can be made। Why the society is bound to repair the terrace leakage? क्यों सोसाइटी का ड्यूटी हो जाता है कि वो टेरेस रिपेयर करे? क्योंकि पूरा बिल्डिंग और वो टेरेस, वो पूरा जो बिल्डिंग का सरफेस एरिया होता है फाउंडेशन, और जो टेरेस होता है वो पूरा पैरामीटर जो बाउंड्री का होता है वो पूरा टेरेस होता है ऊपर। मतलब कुछ भी लीकेज हो तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके पूरे बिल्डिंग को नीचे तक उसको ग्राउंड लेवल पे अफेक्ट कर सकता है। सो irrespective of the cost or the expense, society being the trustee and custodian is legally bound to repair the terrace leakages due to the following reasons. Society MC, that is the managing committee, and the society members are legally bound to abide by the society bylaws without any exceptions whatsoever and whichever। अब bylaw number 67 prescribe करता है the following words: following repair and maintenance of property of the society shall be carried out by the society at its cost। तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया आता है? एक्सटर्नल वाटर पाइपलाइंस, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स ऑफ रूफ ऑफ ऑल फ्लैट्स, टेरेस एंड पैरापेट वॉल्स। पैरापेट वॉल्स मीन्स वो जो कॉमन वॉल्स होते हैं जो टेरेस को लग के होते हैं, वो पैरापेट वॉल्स। स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ ऑल रूफ्स ऑफ द फ्लैट्स, external walls of the building, all leakages of water including leakages due to rainwater, leakages due to external common pipeline and drainage line, the damaged ceiling and plaster thereof on the top floor flats on account of the leakage of the rainwater through the terrace। मतलब टेरेस का जो पानी धीरे धीरे सीप होगा, वो जिधर भी गैप, पानी को जिधर भी गैप मिलता है पानी का सोर्स उधर मुड़ जाता है, तो इससे जो भी लीकेजेस कॉस्ट होता है। वी हैव स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, काफी सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं जो आके इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसका रिपोर्ट बना के देते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द लीकेज एंड वेयर इज द सोर्स ऑफ द लीकेज। तो दे आर ट्रेन टू डू दैट, बेसिकली उनका वो जॉब ही होता है। ऑर्डिनरी प्लम्बर को वो ऊपर ऊपर लीकेज वो खाली बता देगा इधर से है, एक इंजेक्शन दे देगा, 6 महीने तक के लिए लीकेज बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। सो दैट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन एंड इट इज अ रिस्की सोल्यूशन। पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है
कि सोर्स ऑफ लीकेज को फाइंड करिए, कहाँ से लीकेज हो रहा है, टेरेस से हो रहा है, किसी के फ्लैट के बाथरूम में हो रहा है, कहाँ से लीकेज हो रहा है। एक बार सोर्स आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद ही रिपेयर्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए। Now, who is liable for terrace leakages? Under Section 73(1) and 1AB, Society Managing Committee responsible for all the acts and omissions detrimental to the interest of the society. मतलब मैनेजिंग कमिटी जो है ऑन उस वक्त की जो एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमिटी है वो लीकेज होने के वक्त, दैट सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी इज 100,000% बाउंड for all the action that will occur because of this leakage. So they will be duty bound to repair it. Under section 154B(1) in bracket 9, the committee means the managing committee or other governing body of the society to which the direction and control of the management of the affairs of the society is vested with. मतलब सोसाइटी का मैनेजिंग की कमेटी के ऊपर पूरा वेस्टेड है अफेयर्स, मेंटेनेंस का, क्लीनिंग का, पानी का। तो जो रिपेयर का पार्ट भी आता है ये भी इज वेस्टेड विद द मैनेजिंग कमेटी एंड दे आर लीगली बाउंड टू डू इट। Building terrace being a common open space is in exclusive control of the society, who is the trustee and custodian. More so specifically under the society reflects its building as assets in the society's balance sheet. जो बिल्डिंग होती है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है ऑडिट के बाद, तो उसमें वो सोसाइटी अपने बिल्डिंग को एक एसेट के तौर पे दिखाती है। एसेट मींस विच हैज वैल्यू फॉर एप्रिसिएशन। अभी जब हम देखते हैं इवन एप्रिसिएशन क्यों होता है फ्लैट्स का, बिकॉज इट इज एन असेट। तो ये एक एप्रिसिएशन होना बाद और इसको एक असेट बोल के मैनेजिंग कमेटी उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाती है एंड उसका डेप्रिसिएशन भी लेती है। डेप्रिसिएशन क्यों लेती है? क्योंकि वो रिपेयर कॉस्ट वगैरह जो होता है, जैसे बिल्डिंग पुरानी होती है उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू भी आ जाता है एज डिसाइडेड बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। The society managing committee therefore is responsible for the repairs to the terrace by virtue of its position and the action that needs to be taken best with the society in itself. This liability extends to facing criminal and civil proceedings if they neglect this aspect. अगर सोसाइटी निग्लेक्ट करती है और वो बोलती है नहीं फ्लैट ओनर्स ने खुद ने कर लेना चाहिए, ये सोसाइटी अक्सर ऐसा होता है। मैनेजिंग कमिटी कभी भी लीकेज का जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है। वो ऊपर वाले फ्लैट को बोलेगा तुम्हारे वहां से लीकेज हो रहा है, या नीचे वाले फ्लैट ओनर को बोलेगा आप दोनों में सेटल कर लो, 50-50% आप लोग कॉस्ट बेयर कर लो और रिपेयर करवा लो। लेकिन ऐसा इग्नोरेंस से बात करना या आके देखना ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल बी क्रिमिनली बाउंड एंड इवन दे विल बी बाउंड सिविली। Prosecution under the Consumer Protection Act also for its omission, negligence, etc. More so because the whole building structure and for risking life and property of the residents and public at large. मतलब लोग भी आते जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, गॉड फॉरबिड कुछ एक्सीडेंट होता है तो the society will be liable for all the damages that may be caused. You can also file a proceeding in the Consumer Court for terrace leakages. The Consumer Courts, the District Forum and State Commission have already decided many matters related to leakages of terraces and awarded damages and compensation to the aggrieved flat owner at the overall cost of the society. मतलब जो भी कॉस्ट होगा वो कंज्यूमर कंप्लेन का या कोर्ट में जाने का, the society will be liable to bear it in case these costs are paid by the complainant in his complaint in the consumer court as well. You can file proceedings in the magistrate court also for terrace leakages. An aggrieved and suffering flat owner is entitled to file complaints in the local criminal municipal court for terrace leakages by following due procedure of law. This is possible more so specifically since leakages cause corrosion and damage to the whole building structure, risking life and property of its residents. मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। लीकेज तो धीरे धीरे होते रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे होने की लीकेज की वजह से इट कुड कॉज अ मेजर डैमेज टू द बिल्डिंग। हम लोग ने लीकेज पे भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव डन सेमिनार एंड वेबिनार ऑन लीकेज एज वेल, wherein we have even spoken about leakages of flats and all.
अभी एक ये होता है जो 10 feet high chain link fencing all around the terrace wall, allowing children to play safely in the terrace, free ground level space for car parking etc. अभी जैसा बॉम्बे है, where space is a restraint, so वो क्या करते हैं कि नीचे तो कार पार्किंग है, तो बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, तो द टेरेस हैज बीन एनक्लोज्ड विद अ चेन लिंक फेंसिंग, मतलब ताकि जब वो लोग क्रिकेट वगैरह कुछ खेले तो द बॉल शुड नॉट गो डाउन. So, but while erecting all these things, they have to take proper precautions, get a structural audit done. आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि इतना लोड ये जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, फैब्रिकेशन का वर्क वगैरह ये सब चेन लिंक फेंसिंग करने के वक्त होगा, उतना वो बिल्डिंग ले सकता है या नहीं. कभी कभी ये चेन लिंक फेंसिंग इसलिए भी किया जाता है कि लोग जैसा वो हम लोग ने स्टार्टिंग में बात की थी कि देयर शुड बी नो suicidal attempts by anybody, so it is just as a precaution that the terrace is covered to avoid an undue accident. मतलब कोई कोई चीज ऐसी ना हो जाए जिसपे जिम्मेदारी सोसाइटी पे आ जाए, तो हर सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी भी अपना ड्यू प्रिकॉशन और केयर लेता है अपनी तरफ से, that they don't want to be involved in unnecessary legal hassles. So they may go ahead and put up a chain fencing to avoid any undue incident. क्योंकि accident कभी बोल के नहीं होता है, accident just happens. So to avoid this, sometimes they take the suo motu decision to fix it. Sometimes it is in the interest, and that is also a good thing, and they should do it, but follow due process of law. Now, section 154B1 in bracket 9, the managing committee and the governing body of the society, under the direction and control of the management with its members for carrying on the affairs of the society, are entrusted with this job of getting everything done, ensuring that there is no leakage on the terrace, and if there is, to get it repaired. Now, nuisances by society members on the terrace. अभी ये भी होता है, अभी ऐसा ही नहीं कि हर बार पार्टी होगी, बर्थडे सेलिब्रेशन होता, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, कुछ फ्लैट ओनर्स बदतमीजी करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, किसी के बच्चे शोर करते हैं, गंदा कर देते हैं, कभी कभी अपने दोस्तों को बुला के जैसा शराब पीना या ऐसा कुछ करना. So all these nuisances should not be allowed. So nuisances by society members on the terrace. Some people drink alcohol, urinate, defecate the place, which is classified as a nuisance, risks to the health of the living members over there, and this should not be allowed, and the society managing committee has full authority to take action against such members. अगर टेरेस पे लीकेज है तो पहले तो फ्लैट ओनर ने क्या करना चाहिए, एक नोटिस या एक लेटर लिखना चाहिए मैनेजिंग कमेटी को कि इस तरह का लीकेज हमारे फ्लैट में दिखाई दे रहा है, तो प्लीज आप आके इसको इंस्पेक्ट कीजिए, प्लीज लुक इनटू इट, प्लीज ट्राई टू फाइंड द सोर्स and see what can be done. From my side, whatever I can help, whatever cooperation is required, I am ready to do it. तो ऐसा होता है, लेकिन the liability lies on the member and the flat owner. कुछ भी लीकेज हो तो आप उसको मैनेजिंग कमेटी के नोटिस पे प्लीज लेकर आइए. Flat owner has to also get an architect certificate, private architect certificate, which will certify the type of items and the quantum of losses of those items. जैसे एक सिविल आर्किटेक्ट होगा, वो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बता देगा कि क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा पार्ट आपका तोड़ना पड़ेगा, उसका कितना रिपेयर कॉस्ट होगा, उसको क्या क्या लगेगा. तो द आर्किटेक्ट विल बी एबल टू एडवाइज इन अ बेटर वे, एंड इट इज बेटर टू गेट एन एक्सपर्ट. लोकल प्लम्बर कुछ नहीं कर सकता, वो उल्टा तोड़ फोड़ के आपके घर का नुकसान कर दे. आपका पूरा जो इतना आपने कुछ खर्चा किया होगा उसको और आपको डबल कॉस्ट में करना पड़ेगा. तो ऑलवेज पे लिटिल मोर बट गेट अ expert advice from the right person and let the right person do the right job. Don't try to save money where you should not be doing it, because in the long run it could affect you, it could affect the people who are living below as well. अब अगर कुछ सोसाइटी का जो टॉप फ्लैट ओनर है उसका लीकेज का जो टेरेस का लीकेज का मेजर काम होगा,
और उसको वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी कि वो फ्लैट ओनर को कहीं और शिफ्ट करे और उसका जो भी रेंटल होगा वो सोसाइटी को बेयर करना पड़ेगा, और दे कैन कम अप विथ सम टाइप ऑफ सोल्यूशन बिटवीन देम ऑफ शेयरिंग 50% ऑल्सो, बट टोटल लाइबिलिटी विल बी ऑफ द फ्लैट ओनर अगर वो लीकेज टोटली टेरेस की वजह से है। फिर सोसाइटी का फ्लैट ओनर जिसका खुद का फ्लैट है उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी, मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी होगी, ताकि वो रिपेयर होने तक वो फ्लैट ओनर को कोई शेल्टर प्रोवाइड करे ताकि वो सुकून से अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। और फ्लैट रिपेयर होने के बाद पूरा काम करके उनका जैसा फ्लोर ऊपर का जो स्ट्रक्चर था टेरेस के नीचे का उसको उसी तरह उनको रिपेयर करके हैंड ओवर करें। और हमेशा विटनेस रखिए, जब आप कोई भी लीकेज ऑब्जर्व करते हो और जाते हो देखने के लिए, तो टेक 2 people फ्रॉम द योर फ्लैट or from some other building, your friend or somebody, and keep and witness that this leakage is there, you have seen it, you have shown it. So in case there is things go out of hand, कुछ complain हो जाती है, कोर्ट में मैटर जाता है, तो you have somebody as witness who will come and stand and say कि हाँ बाबा ये लीकेज था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से, तब वो विटनेस का होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दूसरी जो दो और कुछ बातें हैं टेरेस के लीकेज को लेके, विच वी विल गो थ्रू इट ऑल्सो सो दैट वी कवर द टॉपिक इन डिटेल टुडे। अब जैसा हमने ऑलरेडी कह दिया है कि कंज्यूमर कोर्ट हैज ऑलरेडी इशूड ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट्स who have raised up issues for terrace leakages and also awarded compensation. Also, the society cannot take the excuse that the society does not have the funds for repairing of terrace leakages just so because the society is the custodian entry. मतलब सोसाइटी ये नहीं कह सकती है कि टेरेस का लीकेज के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, तो दिस विल नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज. The society has to keep reserve sinking fund available and not just squander away all the money useless things, so that जैसे बिल्डिंग पुरानी होती है, नई बिल्डिंग में तो कुछ मेजर काम, कभी कभी नई बिल्डिंग में भी लीकेज हो जाता है अगर वाटर प्रूफिंग सही तरीके से नहीं हुआ है या वाटर प्रूफिंग निग्लेक्ट किया है, या फिर बाद में वाटर प्रूफिंग के फ्लोर के ऊपर और एक फ्लोर बांध दिया जिसमें बीएमसी का परमिशन नहीं है, तो वो चीज उस वक्त के अंदर कभी कभी निग्लेक्ट होता है और लीकेज हो सकता है, तो सोसाइटी उसके लिए एक्सक्यूज नहीं ले सकती है. अब ओपन टू स्काई स्पेसेस आर नॉन एफएसआई which cannot be covered or encroached or used as a storage in any manner whatsoever, since it will conjugate a prosecutable offense under the Regional Town Planning Act, Local Civil Act, and the Fire Act. However, it can be used as a general space for sitting, drying, having events and functions. The open space must be extended balcony, terrace attached exclusively to the flat for exclusive use of the member. मतलब टेरेस आप कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए, इवेंट के लिए यूज कर सकते हो. आप सोसाइटी बोल नहीं सकता कि टेरेस पे हम सोसाइटी का ऑफिस बांधेंगे. दिस इज ऑल्सो इलीगल. A society cannot have their office on the terrace, which has been marked as an open space for the use of the flat members. It cannot be sold or purchased. Open to sky space cannot be sold or purchased in any manner, since it would constitute again an offense. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है आपको. जब आप फ्लैट खरीदते हो तो वो जो ऊपर का स्पेस है हर एक फ्लैट ओनर के लिए फ्री में मिलता है. फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लोर स्पेस इंडेक्स अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द ओपन स्काई टेरेस. And it is not defined in the open common space. वाटर जब लीकेज होता है तो उसका एक सिग्निफिकेंट प्रोसीजर होता है जो लीकेज के लिए हमको कैसे फाइलिंग करना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है अपनी कंप्लेंट को. तो उसके लिए थोड़ा हम लोग डिटेल में एक शॉर्ट में उसको गो थ्रू कर लेते हैं प्रोसीजर को. Now what we can do in case of water seepage from the flat above. Water seepage from the flat above, if left unattended, plays havoc with the reinforcement steel concrete bars, corrosion in metals,
and can even cause cancer to human body. मतलब अगर वो पानी, सीपेज का मतलब है धीरे धीरे पानी जो अंदर जाता है, पूरा फ्लश करके पानी नहीं आएगा, धीरे धीरे बूंद बूंद से वो जब अंदर गिरता है पानी स्ट्रक्चर में, तो वो ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि वो नेकेड आई से आपको दिखता नहीं, धीरे धीरे आपको फ्लैट पे थोड़ा ह्यूमिडिटी दिखेगा, दीवार को हाथ लगे तो दीवार वेट दिखेगा. Very slowly without being easily visible, and at time one notices the irreparable damage has already been done. Once concrete cancer starts with a small crack opening, it is a leaning to a linear decay. This means that the scope and cost of repair work required will increase dramatically sometime within months. मतलब जो cost थोड़े में हो सकता है लीकेज को देख के बंद करने में, अगर उसको इग्नोर किया जाए, that cost can escalate more and cause more damage. Sorry. Concrete cancer is caused when steel bar inside the concrete oxidize, leading to the bar rusting, which causes the steel inside the concrete to expand, leading to a hydraulic load on the concrete, causing it to crack and pieces of concrete falling off the building structure, leading to a possible personal injury. मतलब छोटे छोटे कभी कभी हम लोग देखते हैं जब बिल्डिंग पुरानी होती है तो छोटे छोटे कंक्रीट के बिस्किट के जैसे पीसेस ऐसे स्लैब्स में से गिरते रहते हैं, लाइक अ बिस्किट और स्क्वायर शेप में, टुकड़े टुकड़े में, अनइवन शेप में कभी कभी वो गिरते रहते. So that is not good for health. It can cause personal injury also. Now, when you are faced with all these apathies and what you need to do. Now, phase 1, start off with the civic department. पहला civic department को complain कीजिए. Lodge online complaint on BMC website. The website is www.mcgm.gov.in, and with the building and fire department, taking printout of the acknowledgement and complaint and keep that copy with you. Make an elaborate written complaint to the concerned building department in the BMC, your ward officer of the BMC, and enclose the online complaint copy with it, and also find a written complaint and in briefly explain the leakage. It could be in 2 pages, 3 pages, पूरा डिटेल में लिख ले, जरूरत पड़े तो फोटोग्राफ्स निकालिए, एनक्लोजर्स बोल के फोटोग्राफ्स भी अटैच कीजिए ताकि वो क्लियरली दिख सके, ताकि वो इंस्पेक्शन के टाइम पे प्रिपेयर्ड आए. अगर आप फोटोग्राफ नहीं लगाओगे तो आने के बाद उसको देखने में और फोटोग्राफ के साथ जब वो आएंगे तो he will have a better understanding of the leakage and it will help them. Send a reminder to the concerned department enclosing the printout of the online complaint in case they do not respond immediately within the stipulated time that they are supposed to respond. Then make a written complaint again to the zonal local office of the concerned municipal commissioner of your zone, enclosing printout of the copy given to the ward and the complaint copy of online complaint copy also, and take an acknowledgement for your record. अब हम लोग कमिश्नर को और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्यों कंप्लेन करते हैं? क्योंकि वो लोग सैंक्शन करते हैं प्लान, उनके पास सारे कॉपीज होते हैं, and it is their duty, you are paying property tax to them, it is their duty and liability to come and inspect to ensure the residents who are residing there, the residents of the building, the other people who are residing there, their life and property is protected. That is the motto action that you have to take to ensure that others are not harmed because of this leakage. It is always likely that the BMC would act on your complaint, and as soon as you complain to the zonal officer or to the ward officer, the action would be taken and necessary initiative would be taken by them to ensure the inspection and direct the society to carry on the repairs. And if it is not done, they can also level a penalty on the society, and the society will be bound to carry out the repairs once the BMC issues a notice to them. Otherwise, they would be held liable. The MCGM people who come, the engineer of the building and the fire department people who come, they will meet the chairman, the secretary, and they will direct them to go to issue, also tell them that they will be issuing notices to them
if they do not comply with this repairs and carry out the repairs so that the residents are not harmed. Under Section 381 of the MMC Act, the chairman, secretary, society, owner, occupier of the flat, everybody would be given a notice for rectifying the seepage and to also rectify the damage that is being caused to the society building and to the other members of the society. Even a criminal complaint. अभी criminal complaint क्या होता है? A written complaint to the department और उसका कॉपी आप लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी डाल सकते हो और एक कॉपी अपने पास एक्नॉलेज बोल के वो भी रख सकते हो. They would be liable. You can also file an FIR under Section 34 of the IPC and 336. A written complaint should be made to the police. Preferably, it should be in Marathi and English so that you have a record of the same. अभी Section 336 of Indian Penal Code क्या कहता है? Act endangering life or personal safety of others. Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may exceed to 3 months or a fine which may extend to 250 rupees or with both. Of course, ये जो punishment है बहुत मीगर है. कभी कभी ये लोग पैसे दे के छूट जाते हैं, पैसे भी से खिला के, लेकिन वो एक डर बना रहता है क्योंकि हर एक मेंबर जो सेक्रेटरी है, एवरीबडी हैज अ रेपुटेशन इन सोसाइटी, और रेपुटेशन भी अफेक्ट हो जाता है और इट डज मेक अ डिफरेंस. सो इट इज नॉट कि हमको कितने महीने की सजा होती है या पनिशमेंट होता है. अगर आपने एक्शन नहीं लिया और FIR हो गया और कुछ एक्सीडेंट होता है, you will be responsible. As the owner and occupier of the flat, the chairman and the secretary, everybody falls in line with these liabilities and ensure that there is no damage to human life, no damage to property, and no damage to the society property and to the people living there. So it is about, as Hemant sir always says, that cooperative society is where people mutually come together to live in harmony with each other. So if all the parameters are met and everything is taken care of mutually, that nobody suffers for any kind of loss and damage, I'm sure all these, whatever we have discussed, can be avoided if small steps are taken in time. That's all, sir, for today. In case I missed out something, I'll request you to please take it up. I hope I have covered all the points, sir. Yes, madam, you have done very well, and you have given lots and lots of information to our friends over here. I am sure they will benefit out of the same. Thank you for speaking in Hindi and English so that our friends understand both. We will take up questions from the chat box. Yes, sir. I'm sorry, I had a slight throat problem, so for the interruptions in between, my apology for that. Okay, I'll handle the questions. Not a problem on that front. One of our friends was saying कि खाली speech आपका English में दो, but typically we do it in Hindi and English so that हमारे सारे दोस्त जितने भी ज्वाइन करते हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में अब जो ये YouTube वीडियो देखेंगे, वो दोनों तरफ से समझना चाहिए. Not only in English, we speak in English, Hindi, Marathi, whatever is convenient. We try to do that. इनफैक्ट सर 2 लैंग्वेजेस में बात करने में कभी कभी दिक्कत होती है, स्विच करने में, कहाँ पे स्विच करना है हिंदी में, कहाँ पे स्विच करना है इंग्लिश में, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आई एम श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. Yes, madam. I am a Mumbai हो जाता है बोलते बोलते. Yes, I stay in Mumbai, so I call myself a Mumbaikar, and in Mumbai we use a mixture of many languages to get through. Some words of Gujarati also creeps in, some of Marathi, Hindi, English. I mean, languages only to put across your feelings or words to others to understand. Anyway, Mr. Alex Norona says, what about installing mobile towers, portable cabins on the terrace? What is the procedure? Well, sir, you need to take permission from the corporation for that.
because a structural audit is a must for installing of mobile towers. Anything installed on the terrace, the load is bared by the complete whole building up to the ground level. So how strong the building is, how many years old the building is, all these parameters have to be considered. So an architect certificate is a must, and a certified architect for that matter. Not any architect or any person just cannot come and certify. A panel of architects are there with BMC. Okay. That architect will come and For the benefit of Mr. Alex, I'd like to say that we have already done a topic on mobile towers. The mobile tower YouTube video is already available on our website. Please go through. We have put up lots of details on that as to mobile tower install करने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी है, किस किस का परमिशन लेना है, जनरल बॉडी का कैसे परमिशन लेना है, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का कैसे सर्टिफिकेट लाना है, बीएमसी का कैसे परमिशन लेना है, काफी लंबा प्रोसीजर है. एंड today's topic is not on mobile towers. Today's topic it is only relating to terrace and its leakages. Mr. Praveen Kumar Agarwal says solar panel installed on terrace. In such situation, can we keep the terrace locked from safety point of view? अग्रवाल साहब, ऐसा है कि आप कुछ भी इंस्टॉल कर लो टेरेस में, सोलर पैनल इंस्टॉल कर लो, मोबाइल टावर इंस्टॉल कर लो, या आपकी कुर्सी टेबल इंस्टॉल करके रख दो, कानून ये बोलता है कि आप टेरेस को लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उसी दिन शाम को बिल्डिंग में आग लगती है. तो फायर एक्ट के अनुसार आपको सबसे पहले जो जहां पहुंचना है वो टेरेस है. 20 लोग एक साथ टेरेस के बाहर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि टेरेस का दरवाजा बंद है, तो ये बुद्धिमानी का काम नहीं है और कानून भी अलाउ इसीलिए नहीं करता है. ओके, टेरेस का दरवाजा में 2-वे स्विंग डोर क्लोजर लगाया जाता है. टेरेस के दरवाजे पे कड़ी लगाना, जिसको हम लैच बोलते हैं, वो भी अलाउड नहीं, ना अंदर के तरफ से ना बाहर के तरफ से. हम ये एक्सक्यूज नहीं ले सकेंगे कि नहीं ऊपर बच्चे भी जाते हैं वगैरह वगैरह. तो बच्चों का कंट्रोल करने का काम पेरेंट्स का है. कानून बोलता है टेरेस का दरवाजे को लॉक नहीं करना है, एंड इट इज ए ऑफेंस, पेनल्टी भी लगती है और उसको इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है लॉ में. मैडम ने ऑलरेडी डिटेल किया हुआ है. डीसी रूल 38 और 43 और 44 एंड वगैरह जो है फायर एक्ट 211 के अंदर में, ये सब के अंदर में आप टेरेस लॉक नहीं कर सकते. आई जस्ट रिपीट, डीसी रूल 38 रेड विथ डीसी रूल 43 एंड 44, आप टेरेस को लॉक नहीं कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं तो लास्ट में जब हमारा समय बचेगा तो वी विल टेक इन 1-to-1 क्वेश्चंस. सो लेट मी कंप्लीट द चैट बॉक्स क्वेश्चंस फर्स्ट. ब्रजेश पुनावाला साहब का क्वेश्चन है कि इफ एनी सुसाइड takes place, then MC is responsible. The MC is responsible because if any suicide takes place, then MC is responsible. Well, MC is not responsible if you want to go up and jump from the terrace or ऊपर बैठ के दारू पीना है या पार्टी करना है वगैरह, उसका MC की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से नहीं है कि अगर एमसी को ये पता चलता है कि ऊपर टेरेस में कोई तमाशा हो रहा है, तो एमसी की लायबिलिटी है कि जाके सिक्योरिटी को बोल के वो जगह खाली करवाया जाए, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके बोला जाए कि ये सब तमाशे हो रहे हैं, न्यूसेंस हो रहा है, इट इज क्लासिफाइड एज ए न्यूसेंस अंडर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में न्यूसेंस हो रहा है. वहां पे ऊपर जो पार्टी बज रही है और लाउड स्पीकर शोर कर रहा है, ये शराब वगैरह कर रहा है, तो आप कुछ मत करिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए. दे आर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व है आके ये सब चीजें बंद करने का वगैरह करके. हेमा पटेल मैडम का एक क्वेश्चन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ फ्लोर बिल्डिंग हैविंग टेरेस शुड बी केप्ट ओपन. यस,
चाहे वो 35 माले की बिल्डिंग हो या 500 माले की बिल्डिंग हो या 3 माले की बिल्डिंग हो। टेरेस बंद करना डीसी रूल्स और फायर एक्ट के कानून के विरुद्ध में है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि बिल्डिंग लंबी है तो ऊंची है तो टेरेस को लॉक करना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आपके घर में बॉक्स ग्रिल लगाना भी गैर कानूनी है। एंथोनी मेंडिस साहब का प्रश्न है कि वी हैव टू विंग्स accessible from A wing to go to B wing and vice versa. We have placed keys at the entrance of both the wings, which can which can be used to open the terrace from, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि you cannot keep the terrace closed under any circumstances. चाबी यहाँ पर रखो, मैट के नीचे रखो, जेब में रखो या वहीं पे रखो, वो भी अलाउड नहीं है। द लॉ सेज terrace cannot be closed. In other words, the law even says कि you cannot install a latch, कड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप लॉक लगाने का तो प्रश्न ही नहीं आता है। टेरेस के दरवाजे में आपको 2 वे डोर क्लोजर लगाना है। अंदर से धकेलोगे तो बाहर खुलेगा, बाहर से धकेलोगे तो अंदर की तरफ खुलेगा, स्विंग डोर जिसको कहते हैं। मिस्टर पूनावाला का एक स्टेटमेंट है, रिसेंटली हर्ड दैट पेइंग by paying some amount to BMC, private terrace can be converted with proper concrete. For your information, up to 1/3 area under the DC rules, up to 1/3 area of your private terrace, जैसे प्राइवेट टेरेस है, ओपन है, लेकिन एक 2.5 फीट का वॉल आप खड़ा कर सकते हो by taking permission from BMC, but you cannot totally enclose it. एक प्रश्न दूसरा है, if the terrace leakage is not the jurisdiction of deputy registrar, then whom to complain? हमारे स्पीकर ने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, बट फिर भी आई विल अगेन से, टेरेस का लीकेज का जुरिस्डिक्शन है, अगर म्यूचुअली काम करना है तो बायलॉ नंबर 46 एंड बायलॉ नंबर 67 एंड बायलॉ नंबर 158 में इसका कार्यक्रम दिया हुआ है, इसका डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर 2 फ्लैट के बीच में लीकेज है तो 67 158 के अनुसार रेड विथ मैंने आपको अभी जो बताया 67 रेड विथ 158 के अनुसार कॉस्ट शेयरिंग करना है। पर अगर ये लीकेज छत से हो रही है, टेरेस से हो रही है, तो लीकेज ठीक करने का काम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का है, उसमें कॉस्ट शेयरिंग वगैरह को कोई प्रश्न नहीं आता। और यहां तक कंप्लेन करने की बात है, पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी को नोटिस दो, मेरे फ्लैट में टेरेस से लीकेज हो रहा है, सोसाइटी रिपेयर करा देता है तो ठीक है। सोसाइटी का सेक्रेटरी का काम है बायलॉ नंबर, एक पर्टिकुलर बायलॉ है जिसके अंदर सोसाइटी को पावर दिया हुआ है कि आप बायलॉ नंबर 46 कि आप 46 में सर्वे करवाइए सोसाइटी का प्लम्बर या रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को लेके, और फिर उसका रिपेयर सोसाइटी के खर्चे से करना है। सोसाइटी फिर भी नहीं करती है तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो उस चीज के बारे में, सेक्शन 336 एंड 34 सेक्शन के अंडर में, इंडियन पेनल कोड के अंदर में। आप बीएमसी में, सबसे बेस्ट है बीएमसी में कंप्लेन करो, सेक्शन 381 के अंडर में बीएमसी आता है, नोटिस इंस्पेक्ट करता है, पंचनामा करता है, सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाता है, दोनों फ्लैट होल्डर्स को बुलाता है, उनका भी स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करेगा पंचनामा में, फोटो वगैरह लेगा। और बीएमसी के खुद के कोड्स है, बीएमसी कोड जिसको कहते हैं, टिपिकली जैसे हमारे मुंबई में विलेपार्ले में है, कुर्ला में है, वहां भी बीएमसी कोड, वहां पे लोअर फ्लैट वाले के ऊपर एंड सेक्रेटरी के ऊपर वहां पे केस फाइल होगा।
सेक्शन 381 रेड विथ सेक्शन 481 के अंडर में। इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये सबसे कारगर और सबसे बेस्ट है। मिस्टर हेमंत मिर्जी का प्रश्न है, इज ए पॉकेट टेरेस इफ शोन एज यूजिंग एफएसआई बी सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी टैक्स? पॉकेट टेरेस यूजुअली एफएसआई फ्री होता है, इसीलिए उसे एनक्रोच नहीं कर सकते, इसीलिए उसे एनक्लोज भी नहीं कर सकते। एनक्रोच एंड एनक्लोज दोनों नहीं कर सकते। बट पॉकेट टेरेस का भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, भले वो एफएसआई फ्री क्यों ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे सोसाइटी के कॉमन स्पेसेस, लॉबी, सीढ़ियां, क्लब हाउस वगैरह वगैरह, ये सभी कॉमन ओपन स्पेसेस में गिने जाते हैं, फिर भी उसका प्रॉपर्टी टैक्स लगना ही लगना है। प्रॉपर्टी टैक्स इज नो वे रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ एफएसआई। एफएसआई कंज्यूम नहीं भी किया होगा या किया होगा तो भी प्रॉपर्टी टैक्स उस चीज का लगना ही लगना है। मिस्टर अग्रवाल का एक प्रश्न है, प्रवीण कुमार अग्रवाल का, कि allowing members to use terrace on daily basis can result into disturbance to the members on the top floor, to the top floor. In that case, can a member take objection? कानून की परिभाषा में सर ऐसा है कि टेरेस लॉक नहीं कर सकते हो, टेरेस कॉमन ओपन स्पेस है, टेरेस का यूसेज किसी भी मेंबर को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजिंग कमेटी यानी कि जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास करके आप कुछ कुछ एक्टिविटी करटेल कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बंदिश ला सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि ठीक है, रात के 10 बजे के बाद में छत पे किसी को जाना अलाउड नहीं है, छत में खेलना अलाउड नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि छत में मसाला कूटना अलाउड नहीं है। आपको अगर याद हो या पता चले, एक जमाने में कूटनी करके ऐसे ठोक के यूज करा करते थे मसाला पीटने के लिए, जो मैडम ने भी, एडवोकेट मैडम ने भी थोड़ी देर पहले बताया। नॉन स्टॉप कूटने से या शोर करने से या दबाव बनने से छत की जो फ्लोर है, जमीन है, उसमें माइक्रो क्रैक्स आते हैं जो लीकेज का कारण बनते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आप रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन, नोटिस एजेंडा रेजोल्यूशन लेना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू सर। मिस्टर नितिन राणे का प्रश्न है, इफ लीकेज फ्रॉम फ्लैट नंबर 404 from 504 into 404 below flat, how expenses will be distributed? Well, बायलॉ के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बायलॉ नंबर्स बताए, इन दोनों बायलॉस के हिसाब से आपको दोनों मेंबरों को कॉस्ट शेयरिंग करना, ये बायलॉ का मुद्दा है। दैट इज बायलॉ नंबर 67 रेड विथ 158। बट कई बार क्या होता है कि ऊपर के फ्लोर वाला ये कहता है कि टिपिकल वर्ड्स है, मुंबई में खास करके यूज किए जाते हैं, नहीं रिपेयर करना, जो जो करना है कर लो। ये आपको सुनने को मिला होगा कई बार। ऐसी सूरत में नीचे वाले फ्लोर मेंबर को पुलिस स्टेशन में एक ऑर्डिनरी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, लिखत में लिखो कंप्लेंट, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 336 रेड विथ 34, और कंप्लेनेंट जो आप कंप्लेनेंट हो और सामने वाले का नाम, फ्लैट नंबर डालिए और बताइए कि ऐसे ऐसे लीकेज हो रहा है, बिल्डिंग को खतरा है, लीकेज के कारण बिल्डिंग को खतरा है। साइमल्टेनियसली ऐसा ही एक कंप्लेंट बीएमसी को फाइल करो सेक्शन 381 के अंडर में, कि भाई ऐसा ऐसा ये लीकेज है, आपसे निवेदन है कि आप आके इन्वेस्टिगेट करो इस चीज को, इंस्पेक्शन करो, पंचनामा करो और रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन फाइल करो बीएमसी कोर्ट में। ओके, मिस्टर पूनावाला का एक प्रश्न है, कैन गार्डनिंग बी डन ऑन टेरेस? There is no restriction on doing gardening in your own private terrace or in your balcony or even on the terrace of the building. लेकिन इस कारण से अगर कोई लीकेज होता है, कम से कम बीएमसी कानून के अनुसार इसमें कोई बंदिश नहीं है इस समय। लेकिन आप ये कहोगे कि कॉमन ओपन टेरेसेस में हम पूरा का पूरा गार्डन भर देते हैं और उसमें आने जाने में बंदिश हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है, आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो वो अलाउड नहीं है।
लेकिन अगर आपका प्रश्न ये है कि मेरे खुद के प्राइवेट टेरेस है या बालकनी है, मैं वहां पे गार्डनिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, द आंसर इज यस, यू कैन डू इट, प्रोवाइडेड यू डू नॉट जनरेट एनी लीकेज to your other co-members, co-residents of the society. सर ये पेंट हाउस जो होता है वो भी ओपन टेरेस के इसमें ही आता है सर? पेंट हाउसेस के भी जो मैडम अभी ऐसा है, तो कम बनते हैं सर। पेंट हाउस का मतलब यहाँ पर डीसी रूल्स के हिसाब से ऐसा हो गया, जैसे राणे साहब ने फ्लैट नंबर 504 और 404 का मेंशन किया, आप दोनों फ्लैट के मालिक हो, तो पेंट हाउस यहाँ पे हम ऐसा एक स्टेटस सिंबल है, बाकी और कुछ मतलब नहीं है। आपके दोनों फ्लैट के बीच में प्राइवेट एक्सेस है, मतलब अंदर ही अंदर आपने मिनी हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा लिया हुआ है या मिनी मिनी सीढ़ी लगा लिया हुआ है, स्पाइरल स्टेयरकेस भी लगते हैं, तो अंदर ही अंदर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए उसको एक वर्ड दे दिया है पेंट हाउस। लेकिन इंडिविजुअल फ्लैट है, सोसाइटी दोनों फ्लैट को इंडिविजुअली बिलिंग करेगी वगैरह वगैरह। सो और पेंट हाउस में अपने अपने खुद के प्राइवेट पॉकेट गार्डन्स, पॉकेट टेरेसेस हो सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू इट। देयर इज अ क्वेश्चन बाय Innovarium LLP. Society has allowed restaurant which is on the ground floor to use terrace to install cooling towers. Restaurant has occupied the entire space and is paying nominal maintenance charges also. Also, the restaurant owner is part of MC and the entire MC is hand in glove with the arrangement. How to proceed in such a situation? It is true that if your building is a semi कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे कि 90 फ्लैट्स रेसिडेंशियल है और 10 यूनिट शॉप्स के हैं, या जिसमें आप रेस्टोरेंट चला रहे हो या डिस्पेंसरी चला रहे हो वगैरह वगैरह, तो रेस्टोरेंट ओनर को चिमनी ऊपर तक लेके जाने का राइट है, ऊपर अपना खुद का प्राइवेट वाटर टैंक इंस्टॉल करने का राइट है, अपना कूलिंग टावर जो आपने वर्णन किया इसका भी राइट है, पर इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर का मतलब कैसा है, आपको रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना है, बीएमसी का अप्रूवल लेना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें करने के बाद में आप ये ऊपर अपना जो मर्जी है आप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कवरिंग ऑफ हार्डली 1/3 ऑफ द टेरेस एरिया। मतलब अगर आपने 1/3 टेरेस एरिया कवर किया और बाकी छूटा हुआ है, देन ऑल्सो दैट इज सफिशिएंट फॉर यूज इन एन इमरजेंसी। मिस्टर विक्रांत जिंदाल साहब का एक प्रश्न है, AGM resolution of blocking the terrace with only one member dissenting, will it be resolution invalid as against the law? आप AGM में रेजोल्यूशन पास करो या ना करो, मैनेजिंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास करो या ना करो, टेरेस को लॉक आप कानूनी तौर से नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको सेक्शंस ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ये दिस इज नो एक्सक्यूज टू से कि भाई जनरल बॉडी है तो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन सुप्रीम है। जहां तक स्टैट्यूटरी कानून की बात है, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन की वैल्यू 0 है, इट इज नल एंड वाइड। आप कल उठ के जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में ये भी एक रेजोल्यूशन पास कर देना कि सोसाइटी इनकम टैक्स नहीं भरेगी, सोसाइटी जीएसटी नहीं भरेगी, सोसाइटी अपने खर्चे से 4 माला और ऊपर इंक्लूड कर देगी, तो ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं है, गैर कानूनी काम करना अलाउड नहीं है। Okay, now we will take one-to-one question. There is a request by Mr. Sudhanshu Gupta for a question. Mr. Sudhanshu Gupta, if you are there, please unmute. Okay, Mr. Gupta, please go ahead. जो पॉकेट टेरेस है, पॉकेट टेरेस में 1/3 of the pocket terrace, for example, the length of the terrace is 40 feet and the width is 30 feet. So 10 feet by 40 feet cover कर सकते हैं 100%. आप पॉकेट टेरेस की बात कर रहे हैं या कॉमन टेरेस की बात कर रहे हैं? पॉकेट टेरेस. ओके,
पॉकेट टेरेस में आप सिर्फ जमीन लेवल से 1/3 एरिया आप उसको वॉल बिल्डअप कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका फ्लोर का हाइट 10 फीट है, तो 1/3 एरिया मतलब लगभग कितना हुआ, 3 फीट के आसपास हुआ। उतना आप कम टेरेस को वॉल में कवर कर सकते हो। बाकी आप ये सोचोगे कि मैं ऊपर ग्रिल लगा लूं, जाली लगा लूं, कोलैप्सिबल शटर लगा लूं, विंडोज लगा लूं, स्लाइडिंग विंडोज लगा लूं, दैट इज नॉट अलाउड। Height So wise in बोल रहा हूँ conclude, sir. sorry, Height that wise, 7 feet height. And toilet, your toilet voice is and not coming clearly. Your voice is not coming clearly, please. 10 feet height is allowed, sir. 10 feet higher than latrine bathroom is allowed over there. Pocket terrace. फ्लोर की हाइट कितनी है सर जी? Floor is 10 feet. 10 फीट। 1/3 कितना हुआ सर उसका? हाइट का 1/3 कितना हुआ 3 feet. 3 feet height. है ना? 1/3 का हाइट हुआ लगभग 3.33 फीट। तो 1/3 आप जमीन लेवल से आप उसे वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या जाली लगा सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि मैं पॉकेट टेरेस को टोटली कवर करके एक रूम बना देता हूं, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी यूजिंग FSI ऑफ दैट एरिया विच इज प्रोहिबिटेड अंडर द DC रूल्स ऑल्सो, अंडर MRTP ऑल्सो, एंड अंडर BMC एक्ट ऑल्सो, अंडर द म्युनिसिपल एक्ट दैट इज। And sir, 100% टी शेड लगा सकते हैं पॉकेट टेरेस पे। पॉकेट टेरेस पे आप टिन शेड लगा सकते हो, अभी BMC ने रिसेंट सर्कुलर्स में अलाउ किया हुआ है। अगेन यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर्स, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, BMC परमिशन, BMC पेमेंट एक्सेट्रा करके आप वो चीज कर सकते हो। कई लोग करते हैं क्योंकि आपका अगर पॉकेट टेरेस, मानो आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो, बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं, पान का थूक फेंकते हैं, केले के छिलके फेंकते हैं, शराब के बॉटल फेंकते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, तो उस कारण से आप ये एक्सक्यूज दे के आर्किटेक्ट का रिपोर्ट लेके आप ये कर सकते हो। देयर आर डॉक्यूमेंटरी प्रोसीजर्स टू बी डन टू डू ऑल दिस थिंग, बट इट कैन बी डन, बट टोटल एनक्लोजर इज नॉट अलाउड। Okay. Okay. Anybody has any other questions? So we find that in many places or in buildings, people break the wall. That when you have a pocket terrace, there is always a wall and then the pocket terrace with the door. Like suppose your hall has a pocket terrace, then you have a window and then the terrace. So many people have broken that wall. They have removed that window. They have extended the hall. So that is a structural change which is caused within the flat. But overall, in the end, if you look at it, it does affect the structure of the building. Yes, it is an offense under 381 also, read with Section 3 of the BMC Act. BMC is entitled to do the inspection on their own or on your complaint. इंस्पेक्शन करो, पंचनामा बनाओ, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह लो, उस मेंबर को नोटिस दे दो कि रिस्टोर करो। नहीं रिस्टोर करता है तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। कोर्ट भी पेनल्टी करता है, कोर्ट भी ऑर्डर देता है कि इसको पेनल्टी भरो, रिस्टोर करो या तो जेल जाओ। 482 MMC BMC एक्ट में प्रोविजन है कि कंटिन्यूइंग पेनल्टी, हर दिन का पेनल्टी चढ़ते जाएगा आपके ऊपर उसमें, और फिर भी आप नहीं मानते हो, नहीं रिस्टोर करते हो, तो इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है उसके अंदर। कई लोग करते हैं ऐसा, और जब तक करते हैं, जब तक चल जाता तब तक करते रहते हैं। सर यूजुअली कभी कभी वो MC के साथ में मिलके करते हैं। MC भी सबके गुड बुक रहने के अंदर में है कि सबसे अच्छा रहे, वो परमिशन दे देते हैं इंटरनली, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग रन में इसका काफी इम्पैक्ट होता है जब बिल्डिंग पुरानी होने लगती है। अभी बॉम्बे में भी हमने अक्सर देखा है टेरेसेस पे आग लगी है, जो रेस्टोरेंट्स और मैक्सिमम ऑफ देम हैव नॉट टेकन BMC परमिशन। Yes. What are you trying to say? The MC is corrupt. MC is not corrupt. I am not saying directly, I'm not accusing them of being corrupt, but somewhere around they are also liable to ensure that, see, just people paying taxes and getting away with everything is not the solution. They have If to we take say कि MC is liable for
for prosecution, for legal actions, then there is no harm in saying that MC is corrupt because you have violated the law. अब ये तो नहीं कह सकते हो ना कि नहीं मुझे नहीं पता था करके, आप ये तो कह नहीं सकते हो, क्योंकि कानून का पहला प्रिंसिपल है कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, करेक्ट है सर. ना. आप ये कह नाही सकते हो की मला नाही माहित होता की त्याचा खून केला तर त्याला 15-14 वर्षाची सजा आहे, ये तो आप नहीं कह सकते हो ना. बराबर है सर. I'll repeat it in हिंदी. आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि खून करने की सजा 14 साल है, ये मुझे पता नहीं था, मेरे से तो गलती से खून हो गया. ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. हर कोई बोलने लगेगा ये चीज. तो अभी जो कानून के विरुद्ध में है, आप उसको काम मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बिल्डिंग को आप खुद ही धोखे में डाल रहे हो. अभी एमसी ने अगर अनिल शर्मा को अलाउ कर दिया ये काम करने के लिए, अनिल शर्मा ने बोला कि मेरा तो अनिल शर्मा के साथ में उठना बैठना है, कॉकटेल पार्टीज वगैरह होती है, तो उसके फ्लैट से अगर नीचे लीकेज हो रहा है तो होने तो मुझे क्या करने का उससे. लेकिन वो लीकेज के कारण वो पानी 8वें फ्लोर से होते हुए 7वें 6ठे नीचे तक जाता है. सारा जो कंक्रीट का बीम्स और सलिया है उसको गलाते रहता है धीरे धीरे, उस समय के साथ में गलता रहता है वो चीज. और जब कभी मेजर रिपेयर का खर्चा आता है तो वो खर्चा सिर्फ अनिल शर्मा से नहीं लिया जाएगा या एमसी से नहीं लिया जाएगा, तब तक वो करप्ट एमसी छोड़ छाड़ के भाग चुकी होती है या एमसी दूसरी आ जाती है. 5-10 साल तो लगते हैं ये चीज को. तो वो जो मेजर रिपेयर का जो खर्चा आता है वो तो आप सारे लोगों से लोगे, isn't it? Yes sir. खाली अनिल शर्मा से लोगे. तो दिस इज व्हाट इज करप्शन अबाउट मैन. बराबर है सर. ओके, जिंदाल साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर केतली मैम का एक क्वेश्चन आया है शायद चैट बॉक्स में. ओके, रीड करिए मैम और प्लीज आंसर करिए. यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू सो. Sure sir. If there is a pocket terrace, big or small, between two flats, how far is it to correct to do terrace plantation by one of the residents, thereby causing discomfort and breeding of mosquitoes to all the other residents? These days, even BMC has many times come up with circulars to refrain from plantation which promote the breeding of malaria or dengue mosquitoes. Can the MC levy penal action against the residents for encroaching the pocket pocket terrace, terrace. which needs to be kept vacant during fire? Well, somewhere along the way, ma'am, when dengue set in, they had totally stopped people from using plantations and ensuring that water is not seen. Water should drain away. If water collects in those pots, and then that becomes a breeding ground for mosquitoes. Am I right, sir? If water is drained away into the mud and it is absorbed in the soil and the plants look dry, then there is not much of a problem. So it is मैडम ऐसा भी है कि पॉकेट टेरेस आपका खुद का टेरेस है और वहाँ पे गार्डनिंग करना अलाउड है, बीएमसी एक्ट के हिसाब से भी अलाउड है. पर अगर आप ये प्रूव करोगे कि इस पॉकेट टेरेस में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं या पानी जमा हो रहा है, या हिंदी में मराठी में इसको बोलते हैं पानी साठतो, या इट इज एक्यूमुलेटिंग, देन यू द मैनेजिंग कमिटी यू हैव आस्क्ड कि can MC levy penal action? MC is no authority to levy any penal action for all these offences. There are statutory provisions available. जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले और फौजदार एडवोकेट मैडम ने भी बताया कि सेक्शन 336 रेड विच 34 अवेलेबल है इस काम के लिए, सेक्शन आईपीसी का. सेक्शन 381 रेड विथ 481 भी अवेलेबल है इस काम के लिए. आप बीएमसी में कंप्लेंट करो और इस चीज का प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के लिए बंदोबस्त करो. अगर एमसी ने पेनल एक्शन कर दिया, समझो मानो एमसी ने आपको ये बोला कि भाई ये आपने गलत किया, इसका 5,000 रुपए भर दो. अगर मैं हूं तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है ये 5,000 रुपए लो, और भर दिया मैंने, और मैं अपना काम कंटिन्यू करे जा रहा हूँ, वहां पे मच्छर आए जा रहे हैं वगैरह वगैरह. तो आपका जो पेनल्टी लेने का था, इज इट सॉल्विंग द प्रॉब्लम? इट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम.
because there is a statutory act to solve the problem. Once you are burdened with criminal prosecution for such activities, then you yourself will stop it. केतकी मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मैम? Sir, how far is this also correct that during fire outbreaks, just like refugee area, all the common terraces also should be kept vacant as far as possible, which will be helpful for evacuation. So does this also apply to the pocket terraces? No, madam. Pocket terrace is a integral part of your internal flat, but Okay. FSI free. But Okay. FSI free. Okay. So pocket terrace में अगर समझो मानो फ्लैट नंबर 404 में पॉकेट टेरेस है और उस फ्लोर में आग लग जाती है, ना, 4th फ्लोर पे आग लग जाती है, That is a individual terrace totally. या तो आप बाकी जो आठ जो फ्लैट है उस फ्लोर में वो आपके पॉकेट टेरेस में समाएंगे भी नहीं, जमा भी नहीं हो पाएंगे. और अगर मेरा फ्लैट 404 है और आग लगी भी है और मेरी फैमिली घर पे है तो मेरा प्रायोरिटी फैमिली फर्स्ट, तो मैं मेरे फैमिली को पॉकेट टेरेस में रखूंगा. बाकी जो 40 लोग रह रहे हैं उस फ्लोर में, मैं उसके अपने पॉकेट टेरेस में आने नहीं दूंगा क्योंकि उतनी जगह ही नहीं होगी. दिस लॉ अप्लाइज टू रेफ्यूज एरिया and to the common open terrace in the atop the building. छत के ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर जो छत है, आपने जो कहा वहां पे ही एप्लीकेबिलिटी है, डेफिनेटली है. सो फ्लैट को जो अटैच्ड टेरेस आता है वहां बीएमसी ने प्लांटेशन अलाउ किया है, लेकिन Yes. दो फ्लैट के बीच जो कॉमन स्पेस में सोसाइटी टेरेस आता है वहां पर प्लांटेशन इज नॉट अलाउड ना सर. दो फ्लैट के बीच में जो कॉमन टेरेस आता है, सर, दो फ्लैट के बीच में जो स्पेस होगा कॉमन, स्टेयर के पास में या कहीं, दो फ्लैट के बीच में कॉमन टेरेस कहाँ से आएगा? हमारा है ऐसा सर, फोटो भेज देती हूँ. थोड़ा विचित्र पोजीशन है, मेरे समझ के बाहर है इस समय, मेरे समझ के बाहर की बात है. सॉरी, लॉबी के नहीं, मैडम बोल रही है टेरेस का वर्ड यूज कर रहे हैं, लॉबी के वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं मैडम. जिसे कहते हो आप कॉमन बैल्कनीज. लेट अस बी स्पेसिफिक. बालकनी है, कॉमन पॉकेट टेरेस है या कॉमन टेरेस है? That pocket terrace question is answered already by you. Okay. Pocket terrace is that which comes with your flat inside your threshold. Okay. Now if there is a common space which is used as an extension balcony between two flats originally by the builder or the promoter. That is not common space, madam. No, that is a private space. अगर फ्लैट के अंदर से उस बालकनी में जाने वाले हो, अगर आपके फ्लैट के अंदर आते हैं और फिर उस बालकनी में जाते हैं तो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया. क्या कह रहे हैं मैडम? वो दरवाजा आप जो बोल रहे हो, अपने फ्लैट से उस टेरेस को जाने का जो दरवाजा है वो बाद में बनाया जा रहा है, ओरिजिनल प्लान में वो दरवाजे नहीं है. एनक्रोचमेंट्स किया इन अदर वर्ड्स. वो एक्चुअली इवैक्यूएशन के लिए 7th फ्लोर 14th फ्लोर ऐसे हर जगह पर जो है बड़े बड़े एनलार्ज्ड बैल्कनीज दिए गए हैं ड्यूरिंग फायर आउटब्रेक्स. तो वहां प्लांटेशंस नहीं हो सकते ना सर? हो सकता है ना, डेफिनेटली हो सकता है. बीएमसी एक्ट में 488 सेक्शन है जिसके अंदर में आप एक सिंपल अर्जी डाल दो 8 लाइन की, फला एरिया में ये सब इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारी बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करो. तो वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन सिर्फ आप ही का नहीं करेगा, आई मीन पूरी बिल्डिंग का करेगा. बराबर. हाँ, यस ऑफ कोर्स, पूरी बिल्डिंग का करेगा, पंचनामा बनाएगा एंड बाकी की जो कार्यवाही होनी है वो करता रहेंगे सर. मैम ओके ओके. मिस्टर जिंदाल, आपका कोई प्रश्न था? वी विल टेक अप मिस्टर जिंदाल्स क्वेश्चन, देन वी विल कम बैक टू मिस्टर मेहता मैम. जिंदाल साहब, आर यू देयर? हाँ जी सर. यस सर. मैडम का जो प्रश्न था ना कॉमन बैल्कनी, मेरा हिसाब से ऐसा है कि काफी बिल्डिंग जो 50s या 60s में बनी थी ना, उसमें मतलब एक ही फ्लोर में ना 10-10 फ्लैट या 15 फ्लैट होते थे. एक होता था और दूसरे बाजू में रोड फेसिंग साइड में ना एक लंबी बैल्कनी होती थी जो पीपल यूज इट फॉर मॉर्निंग वॉक और समथिंग. अभी क्या 90% सबने वॉल्स बना के अपना प्राइवेट रूम कन्वर्ट कर दी है. क्या इनका वैसा इशारा हो कि अभी कोई बिल्डिंग में 2 फ्लैट के बीच में कॉमन टेरेस हो, जैसे माइम एरिया में, दादर एरिया में
जो पुरानी बिल्डिंग्स है जैसे दादर वेस्टर्न रेलवे में, वहाँ पे एक जगह पे मतलब इस तरह का कॉमन बिग बैल्कनी वेयर पीपल कैन जस्ट टेक अ मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग और जस्ट कैन यूज इट फॉर अ वॉक। और जो एंट्रेंस है उनका वो दूसरी तरफ से है और लाइन में 10 फ्लैट या 15 फ्लैट है। मुझे दैट इज कॉल्ड ए कॉमन पैसेज है वो, इट्स नॉट ए टेरेस सर, इट इज नॉट ए बैल्कनी। अच्छा अच्छा, कॉमन पैसेज उसको बोलते हैं। पैसेज हो गया वो, कॉमन पैसेज। जैसे आज के दिन पे अगर आपके फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं तो चारों फ्लैट के बीच में कुछ पर्टिकुलर जगह होगी, हाँ, तो वो कॉमन पैसेज हो गया। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था सिस्टम, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते थे और फिर ढेर लंबा सा कॉमन पैसेज है और चॉल सिस्टम की तरह एक एक फ्लैट है, हाँ, वो तो दैट इज कॉल्ड एज ए कॉमन पैसेज। अच्छा वो अब इसमें भी जैसे आप बताते हो कि जो कोने वाला सबसे कोने वाला फ्लैट है हाँ, वो उतना एरिया घेर लेता था, करेक्ट है, वो चीज देखने को मिलता भी है वो चीज। तो इसीलिए मैंने कहा कि कानून में प्रावधान है, अरेंजमेंट है इंस्पेक्शन करवाने का, पेनल्टी करने का, लेकिन आप संस्था हो या एसोसिएशन हो या कुछ बोल रहे सोसाइटी हो, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है इस चीज का पेनल्टी लेने के लिए, हो? वो कानून के पास में है। आप अभी सिंपल भाषा में बोलोगे तो कानून अपने हाथ में लोगे कि मैं पेनल्टी लगाता हूँ, तो मैं बीएमसी का ऑफिसर हो गया, मैं एएमसी हो गया, मैं डीएमसी हो गया, या मैं बीएमसी का डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो गया पेनल्टी इशू करने के। उसी का अधिकार है ना, आपको अधिकार नहीं मिला है सर। सर अभी आपने दूसरा सवाल बोला था ब्लॉक ग्रिल्स के बारे में कि बैल्कनी में ब्लॉक ग्रिल्स लगा नहीं सकते हैं, लेकिन सर बॉम्बे में तो 90% या 99% बिल्डिंगों में लगी हुई है ब्लॉक ग्रिल और ये लोग एज्यूम करते हैं कि इट इज लीगलाइज, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बीएमसी। और आज जो नवी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं बल्कि उसमें भी कई बार बिल्डर बार्गेनिंग करते हैं, अच्छा थोड़ा हमको डिस्काउंट नहीं करते हैं, चलो आपके लिए हम ग्रिल फ्री में लगा देंगे। इस प्रकार से मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी ग्रिल लग रही है, इससे कुछ बता सकते हैं? एक मिनट, मिसेस श्रीनिवासन, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? Yes, sir. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। जिंदाल साहब, ऐसा है कि फायर एक्ट के अनुसार, मैं कानून की भाषा बता रहा हूं आपको, फायर एक्ट के अनुसार आपका आपका जो घर है वो 30th फ्लोर पे है और आग लग जाती है, आप सीढ़ी से नीचे तो नहीं आ सकते हो, क्योंकि 29वें माले पे भी और 28वें माले पे भी आग लगी हुई है। तो आपको बचाने का दो तरीका है, या तो उसी माले पे अगर रेफ्यूज एरिया है तो वहां पे चले जाओ, या अगर टेरेस में जाने का मौका है तो वहां पे चले जाओ, और अगर बचना है तो फायर ब्रिगेड वाला, आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, वो कहाँ से एंट्री करेगा? बैल्कनी से एंटर करेगा। और वहां पे बॉक्स ग्रिल लगा रखा है आपने, बंद हो गया जरा। आपके लिए वो बेनिफिशियल था या फायर ब्रिगेड के लिए बेनिफिशियल था या बिल्डर के लिए बेनिफिशियल था? इसीलिए बॉक्स ग्रिल लगाना गैर कानूनी है। ओके, अगर आप बोलोगे कि मैं कोलैप्सिबल लगा देता हूँ, पर आदत के अनुसार आप उस कोलैप्सिबल में भी ताला लगाते हो। कभी चाबी भी घूम जाती है घर के माथे। वडाला में एक 65 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, 65 फ्लोर्स, कोई भी फ्लोर पे ग्रिल नहीं है, किसी भी फ्लोर पे ग्रिल नहीं है। आप नेट पे ढूंढ लीजिए सर, आपको मिल जाएगा, फोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगे। हमारे वेस्टर्न सबर्ब्स में भी, मलाड में, मारवे रोड पे 55 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, नो ग्रिल्स, पीपल आर लिविंग वेरी पीसफुली। अभी मेरे अंदर एक अगर भय है कि मैं गिर जाऊंगा, खिड़की के पास मत जाइए आप, क्योंकि अगर 55 माले की बिल्डिंग में जब लोग रह रहे हैं और वो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन क्या आपने पेपर में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंटली हर रोज कोई ना कोई गिर रहा है अपने गैलरी से या बालकनी से या खिड़की से? भूले भटके कभी कभी पढ़ने को मिलता होगा। तो ये हमारा डर है कि हम उसको ग्रिल लगाते, लेकिन कानून नहीं अलाउ करता है। अगर फायर एक्ट वाले, अगर बीएमसी एक्ट वाले इसको इन्फोर्स करने को जाते हैं तो 25,000 का पेनल्टी है इस पे, 25,000 रुपीज का। बीएमसी के बायलॉज देख लीजिए, डोंट गो बाय द बीएमसी एक्ट, बीएमसी का खुद का बायलॉज भी है, और बायलॉज के अंदर पेनल्टी का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, मच्छर है घर पे, पानी जमा है, ये पेनल्टी है। बिल्डिंग के कॉमन एरिया में नारियल का पत्ती जमा कर रखा है या
सीमेंट का डरबरीज जमा कर रखा है या पुराने फर्नीचर जमा कर रखा है, उसका ये पेनल्टी है। वो बायलॉज में लिखा हुआ है सर, और वो बायलॉज स्टैट्यूटरी बायलॉज है, हमारा सोसाइटी की तरह बचकाना बायलॉज नहीं है। इट्स नॉट चाइल्डिश बायलॉ, इट हैज फोर्स ऑफ लॉ, दैट बायलॉज हैज ए फोर्स ऑफ लॉ। ओके, और कोई प्रश्न है जिंदा सर? सर ठीक है, हेलो वेट, हेलो मिसेस मेहता, आपका प्रश्न प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मिसेस मेहता। तो ये बॉक्स ग्रिल नहीं लगा सकते हैं, आपने बोला, तो बीएमसी वाले क्यों इतना पेनल्टी लगा के कितना पैसा इकट्ठा कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं करते हैं? अब उसका जवाब ऐसा है कि one moment, I'm requesting people to keep themselves on mute so that we can talk in a much clearer way. बीएमसी में जब कार्यवाही करोगे तभी कंप्लेंट करोगे तभी एक्शन लेते हैं, ठीक है? और वो कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कार्यवाही करना चाहिए, कानून है उसके लिए। मैंने आपको अभी कानून का नंबर भी बताया, एक्ट सेक्शन बताया मैंने, कानून है, लेकिन कार्यवाही नहीं करता। ऐसे तो देश में कई कानून है, लेकिन हर जगह कार्यवाही नहीं होती है। पर हमारा काम है, हम सिटीजन्स हैं, हमारा काम है कि हम अपनी खिड़की पे बॉक्स ग्रिल नहीं लगाए कि अगर कोई घटना होती है तो मेरे को फायर ब्रिगेड वाला नहीं बचा पाएगा, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे माता पिता को नहीं बचा पाएगा वो। और अगर आपने 55वें फ्लोर पे फ्लैट लिया हुआ है नए बिल्डिंग में, तो जब बाकी लोगों ने, बाकी जो 500 लोग जो उस 500 फ्लैट उन्होंने ग्रिल नहीं लगाया, तो आपको क्यों लगाना है उसके अंदर? प्रश्न वो भी आता है ना, जिससे मैंने आपको बताया कि क्या आपने अभी तक रेगुलर न्यूज़पेपर में, रेगुलर टीवी चैनल्स पे ये आपने सुना है कि हर रोज मुंबई शहर इतना बड़ा शहर है, 2 लाख बिल्डिंग के आसपास है, कम से कम 2-4 लोगों को तो गिरते रहना चाहिए, सुसाइड करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा खबर नहीं आ रही है कहीं से भी। भूले भटके कोई अगर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे लोग मिलके अब बॉक्स ग्रिल लगा लोगे, अरे वहां पे गिर गया तो शायद हम लोग भी गिर जाएंगे, ऐसे ही सोचना है, गलत है। थैंक यू मैम। थैंक यू। श्रीनिवासन मैडम। sir, this is regarding leakage. Can you hear me, sir? यस मैम। Thank you, sir. This is regarding a leakage. I have a flat in Thane where the leakage, it is a ground floor flat, and the leakage is coming from down. In the rainy season, the water seeps on the ground. That is from ground level, it comes above. Yes, it happens. How do we deal with it? Well, this is a highly technical question. The water comes into your flat because your area might be on a sort of, you can say, a low-lying area. The water table in your compound or in your area might be high. So reverse pressure sometimes is generated. There is no particular solution for this thing. A registered architect will say, okay, you pump in a lot of holes in that area, make a borewell, pump out the water, etc. These are all temporary solutions. But anyway, you can contact a local architect, the BMC designated officer in the building proposal department, and check out with them if they have got some solution. No, actually the water is coming from the tile is there from below. On the tile, especially the rainy season, you see it is getting wet. Yeah. Because it's a ground floor. You need to coordinate with your registered architect for these purposes. He will do the survey and he will only determine कि कहाँ से leakage because the one problem is there that the around the building it is not concreted around the flat. That is outside the flat. It's whatever description is there. Once the architect surveys it, prepares the report, he will say the building is on the lower side or it is not concreted or there is a water leakage or whatever. He has to determine. Nobody else has that authority to do so, madam.
Okay, sir. But then after that, the repairing will be taken up by the society, or we have to do it ourselves? It has to be done by the society. Okay, sir. And Thank you, madam. one Sir, more, sir, Thank you. one more question is, there is leakage from the outer wall. From outer wall, there is a leakage. Who has to do that? Hello? Leakage from the outer wall has to be taken care of by the society. Okay, sir. Okay, sir. That's what I wanted Thank you, to madam, know. for joining in. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, in reference to what ma'am just said in Thana, so Thane, if you see, there is a creek and most of the areas has been landfilled to construct buildings. So could that also be one of the reason that water is seeping from below? Yes, it is a strong possibility. But who determines that? Correct, sir. Who determines it? The ground water BMC. level department determines it. है ना, बीएमसी के पास में पेस्ट डिपार्टमेंट है, PEST पेस्ट डिपार्टमेंट है. उनका काम है ग्राउंड वाटर लेवल को चेक करते रहने का हर जगह से. आपको जानकारी में ये बता दें कि अगर आपकी बिल्डिंग है, पेस्ट डिपार्टमेंट का काम है हर जगह पीरियडिकली जाके चेक करते रहना कि भाई इस एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल क्या है. क्यों डिटरमाइन करना है? कि बिल्डिंग का फाउंडेशन कमजोर तो नहीं हो रहा उस कारण से, और वो अपना रेमेडियल मेजर्स लेते रहते हैं. बराबर. So this is one of the standard things that a municipal corporation has to do so. Okay, they do so in case of, let us say, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आपने रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के आजू बाजू के एरिया को टिपिकली आपने सुना होगा, इसको डिसिल्टिंग करते हैं. आपके ब्रिजेस बड़े बड़े बने हुए, उनके एरिया के आसपास ये चेकआउट करते रहते हैं ये चीजों को. Because if the water is going to accumulate over there, then it acts as a, what is called as a quicksand. Okay, the soil below the earth shifts. Okay, अगर पानी का लेवल जमीन के नीचे मट्टी में खूब ढेर सारा है तो मट्टी सरक जाती है. Anyway, any other questions before we conclude? Sir. Thank you so much for the surprise. Sir. It is the most. Mr. नरेंद्र शाह, बोलिए. हाँ सर, हमारी बिल्डिंग में हाई राइज बिल्डिंग है और 2 रेफ्यूजी फ्लोर है और दोनों फ्लोर एंकरेज किए हुए हैं. हाँ सर, आपकी आवाज ठीक से आ रही है, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज है, आप वो बंद करके फिर आइएगा. बंद ना. Anybody else has any question, please? हेलो सर. हेलो. हाँ बोलिए सर. हमारे हाई राइज बिल्डिंग है, दादर में रहता हूँ और उसमें 2 रेफ्यूजी फ्लोर है, दोनों एंकरेज किए हुए पैक है, तो इसके लिए क्या करने का? आप बीएमसी में कोऑर्डिनेट करिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के साथ में फोटोज वगैरह ले लीजिए. हमने बीच में पुणे का एक हमारे स्पीकर थे यजदी मोतीवाला, सेम टू सेम जो आपने बताया, उनके भी रेफ्यूज फ्लोर को एनक्रोच किया हुआ था. उनने भी उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट किया. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए, वहां पे सर्वे किया, सब किया, और जो भी एनक्रोचमेंट था वो डिमोलिश हुआ. तो आपको भी वो कार्यवाही करना है. वैसा आप हमारे वेबसाइट में जाके रेफ्यूज एरिया करके वेबिनार, 2 वेबिनार्स हैं, उसको चेक कर लीजिए. उसमें प्रोसीजर वगैरह डिस्क्राइब किया हुआ है. ओके, थैंक यू सर. ओके, आई थिंक if anybody has any other questions, then we will take up 1 or 2 questions. Otherwise, we will conclude for today. अरे सर, और बोलना भूल गया, रेफ्यूजी, तो ये जो रेफ्यूजी फ्लोर है ना, वो भी अपना एंकरेज है. बाद में रेफ्यूजी जो कंपाउंड में हो रहे थे ना, पार्किंग हो रही, तो फायर ब्रिगेड, यस, वो भी सब एंकरेज करके रखा है सब. वेरी गुड, अच्छा है. आप लोगों ने एनक्रोच करने अलाउ किया तो ही तो एनक्रोच हुआ ना सर जी. नहीं अलाउ, हम लोग ने एनक्रोच अलाउ नहीं किया. वो लोग बोलता, ऑनर बोलता है कि बिल्डर ने हमको बेचा है. ओके, सोल्ड टू अस. हाँ,
तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका जो भी एनक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है बिल्डिंग में कहीं पर भी, ग्राउंड फ्लोर की लॉबी का हो या फ्लोर की लॉबी का हो या टेरेस का हो या रेफ्यूज एरिया हो या कहीं पर भी हो, आप बीएमसी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कंप्लेंट करिए और वो अपना कार्यवाही करेंगे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर मतलब वार्ड में मिलेगा कि वो बिल्डिंग प्रपोजल में? आपके वार्ड में चले जाइए और इंक्वायरी कर लीजिए, दे विल बी एबल टू गाइड यू प्रॉपरली। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू Sir, I have one question. Can I ask? Yes, please go ahead, Mr. Bharat Kumar. Yeah, sir, we are planning to go for the shed on the terrace, and on that shed we are planning to go for solar roofing. I mean, the solar thing. So we have already done the structural audit of the building, and the structural auditor has given us the permission that we can go ahead with that. So my question is, like, do we have to have the structural stability certificate also for the same? Yes. A structural auditor is not entitled to give you all such certificates. Okay, he will only check out your building column, beams, etc. This certificate has to be given by a registered architect. Okay. Okay. So Okay. architect will decide that, he will prepare the drawings, etc. He will determine the load, this, that, and it is his work to get the relevant permission from all the relevant departments. A structural auditor does not do that. His job is totally different, and an architect's job is totally different. Okay. So You one can definitely install a metal shade, that is patra shade or a fiber shade. yes. आपके टेरेस में इंस्टॉल कर सकते हो, और उस शेड में आप डेफिनेटली मल्टीटास्किंग करके आप अपना सोलर पैनल्स भी उस पे पक्का इंस्टॉल कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जो पतरा का शेड या मेटल शेड या फाइबर शेड इंस्टॉल करोगे, उसका एक ही पर्पस पोर्ट्रे करना होता है कि आपके बिल्डिंग में वहां से लीकेज हो रहा था, इसके लिए मैं ये जस्टिफिकेशन से ये मेटल शेड इंस्टॉल कर रहा हूँ, और यही सर्टिफिकेट आपको आर्किटेक्ट से लेना है। यह सर्टिफिकेट आपको स्ट्रक्चरल ऑडिटर देने का जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ही डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन, उसके अधिकार में नहीं है। ओके, तो हमको ये आर्किटेक्ट से फिर लेके फिर देन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको जाके देना है, यानी वो जो रेलेवेंट परमिशन लगेगा उसके लिए करना पड़ेगा, राइट? यस, आर्किटेक्ट आएगा, सर्वे करेगा, आर्किटेक्ट को ये बोलना है कि आपके टेरेस से लीकेज हो रहा है, एंड आई सर्टिफाई कि इस लीकेज का एक आसान तरीका है इसमें मेटल शेड बना के देने का, जो अभी इस समय बीएमसी ने अलाउ किया हुआ है। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। Okay, thank you. Now we will conclude today's webinar because it is already getting late. I thank Advocate Fatima Fawza for sharing all the information and answering our participants also. And now, with the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this webinar, and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and thank you.